Yes, sir. Okay. So good morning, all of you. So my name is Tejasvi Karanwal, and I'm a sports and exercise psychologist. And today's webinar will be focusing on the basics of sports psychology. What is sports psychology? What is the importance of it? And then we'll slowly go into why it is needed in the shooting sport. So we'll start off. Here's a brief introduction about myself. As I previously mentioned, I'm working as a sports psychologist at Abhinav Binda Targeting Performance at Jaipur, and I've done my MSc in sports and exercise psychology from CSS, which is Center for Sports Science, Ramachandra University, Chennai. And these are some clicks, and these are some photos which we have added, which I've added in the PPT to just showcase what are the key areas that we follow, what are the key areas that we work. So as you can see, this is me giving a group psychological session to academy people. So these academy people are from athletics and handball. And so in our stadium, we have around 20 sports that we have to cater, and we have around more than 16 academies that we have to cater, and we have to provide them with our facilities. And here we were conducting a inter-domain assessments. So this was one of my assessment, and which included nutrition part, which also includes physiotherapy part, which also includes biomechanics and SNC part. Since we all work as a sports science team, so this is one of my domain that is part of this center. And to share with you guys, this is one more experience that I had, I think 2 years back. 1 year back, which was in Malaysia. So I had a good privilege. I would say I was honored to present a paper in the 9th Asian South Pacific Association of Sports Psychology International Congress, which was held in Malaysia. So I had a paper presentation there, and it was a good 3 days that I had, and it had a lot of good, insightful presentation, which I also included in my practice, and it is helping me to grow as an individual and as well as a sports psychologist. So this is me giving my presentation on the stage, and this was a big moment for me. And I had learned a lot of things from the psychologists that work with Premier League clubs, that work with NBA teams, and that work with Malaysian national teams. So it was a huge honor for me and a great learning experience. And this is a certificate that I received from there. So just moving on. So before moving ahead, let's discuss about what is sports psychology and what are its importance. Why sports psychology is needed, and sports psychology होता क्या है, क्या जरूरत है इसकी इस फील्ड में? क्योंकि काफी एथलीट्स, काफी कोचेस और काफी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में होते हैं, वो काफी आर्गुमेंट आता है इस चीज का लेकर कि क्या जरूरत है, जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जब ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है ऐसे स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन की, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करते हैं. कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है क्या? सो बेसिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक साइंस डिसिप्लिन है जिसमें हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स एड ऑन करते हैं स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज सेटिंग में. तो जैसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं साइकोलॉजी के, लाइक वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी, या काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं विच इज क्रूशियल इन स्पोर्ट्स सेटिंग. क्योंकि एक एथलेट स्पोर्ट्स सेटिंग एक ऐसा डायनामिक सेटिंग है जहाँ पे आपको सिचुएशन वाइज भी और बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. सो इट्स बेसिकली मोर ऑफ अप्लाइड वर्क. जितना हम ज्यादा अप्लाइड वर्क इसमें करते हैं, उतना ही वी कैन गेन मोर इनसाइट अबाउट एथलीट. तो जरूरी हो जाता है कि हमें समझना पड़ता है कि एथलीट क्या चाहता है, एंड व्हाट डज ही वांट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टिंग. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एथलीट्स दे वोंट ओपन अप, एथलीट डजंट ओपन अप, क्योंकि उन्हें लगता है कि इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस. आई वुड से कि उन्हें लगता है कि नहीं, व्हाई शुड वी बी वल्नरेबल टू समथिंग दैट वी आर बेसिकली नॉट. तो ये एक ऐसा फील्ड है जो उनको हेल्प करता है टू नो देमसेल्फ बेटर एंड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड इम्प्रूव फ्रॉम देयर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक एथलीट के लिए, और सिर्फ ना कि सिर्फ एथलीट के लिए नहीं, और भी स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन के लिए, कि दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एथलीट, दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्पोर्ट दे आर पार्ट ऑफ.
सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में समझ आया कि ठीक है, व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, की हमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लगाने होते हैं स्पोर्ट्स एक्सरसाइज सेटिंग में। बट अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अपने समझ आ गया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है क्या, बट व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। So let's go into it. So as I previously mentioned, we have to understand behavior. So since human is a very complex, I would say complex animal, उसका we cannot predict कि अभी human इस moment में क्या है, next moment what he is thinking and what he is going through and how is he gonna react. So understanding behavior is very crucial, is a very important part of this domain. क्योंकि जब हम behavior समझते हैं, जब उनका हम perspective समझते हैं, then we get to know कि yes, this is what he is going through, this is what is needed, and this is how we can help him. So understanding behavior becomes very important. And since we have human is a very good observer, we are tend to observe, we have a tendency to observe more and more. तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं, so it becomes easier for us to deliver our sports psychology and deliver our expertise. And anxiety control, and I am sure most of you here might have faced anxiety, which we call like tension, nervousness, or maybe in Hindi we could call it chinta. So anxiety is a huge word. When we go to like हमारे, if I give an example from my experience, तो हमारे जो सेंटर में दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड एंजाइटी, उनको एंजाइटी वर्ड समझ ही नहीं आता। जब हम बोलते हैं या हम पूछते हैं कि आपको टेंशन होती है या आपको कुछ नर्वसनेस होती है, तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि एंजाइटी होता क्या है, कि आपको आपकी बॉडी टाइट हो जाती है, आपके पसीने आने लग जाते हैं, या आपका माउथ ड्राई हो जाता है, या यू टेंड टू गेट फियर। तो एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझाना कि एंजाइटी होता क्या है। तो अब एंजाइटी जब उनको समझ में आ जाता है, देन दे गेट टू नो कि हाँ सर ये भी होता है, हाँ सर ये भी होता है, ये भी एक चीज है, इस पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, एंड हाँ दिस इज वेरी हार्ड टू ओवरकम एंड एवरीथिंग। तो एंजाइटी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल पार्ट हो जाता है इन स्पोर्ट, क्योंकि जब हमें एंजाइटी होती है, इट डजंट ओनली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर फोकस, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर कॉन्सेंट्रेशन, इट अफेक्ट्स योर अटेंशन ऑल्सो। क्योंकि जब आप एंशियस हो जाते हो, हाउ मच एवर यू प्रैक्टिस, हाउ मच एवर यू आर स्किल्ड, एट दैट मोमेंट वेर द मोमेंट यू हैव टू डिलीवर, उस समय आप डिलीवर नहीं कर पाते, बिकॉज एंजाइटी हैज टेकन ओवर, द टेंशन हैज टेकन ओवर, rather you being taken, rather you being in control of the situation, anxiety is in the control. So स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंस ये होता है कि हम ये समझते हैं कि एंजाइटी हम कब कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हमें समझना जरूरी है कि एंजाइटी होता क्या है पहली बात, और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कब कब होता है। तो ये चीज हमें समझानी पड़ती है एथलीट को। सो आवर रोल इन दिस एरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले हम समझाए कि होता क्या है एंजाइटी, फिर समझाने के बाद कि कंट्रोल कैसे करना है, और फिर कब कब होता है तो हमें उस लेवल तक गिरना पड़ता है। तो गिरना पड़ता है इन द सेंस वी हैव टू गो डाउन टू दैट लेवल कि हम बेसिक से समझा पाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर डीलिंग विद एथलीट्स, वी आर डूइंग फॉर एथलीट्स। तो इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट कि हम उनको कैसे समझा पा रहे हैं कि आप एंजाइटी कंट्रोल कैसे करें, विच इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी कॉम्पिटिशन। एंड ऑब्वियसली आई डोंट नीड, मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कॉन्फिडेंस, क्योंकि एवरी कोच, एवरी एथलीट टॉक्स अबाउट कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है, या आई शुड डू दिस सो दैट माई कॉन्फिडेंस गेट्स मोर बेटर, या मेरे एनहेंस हो जाए मेरा कॉन्फिडेंस। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिसिप्लिन क्या करता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्प्स एन एथलीट टू डेवलप इट्स कॉन्फिडेंस, डेवलप हिज सेल्फ एस्टीम, डेवलप हिज सेल्फ एफिकेसी लेवल्स। तो उसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ अगर ये मैं ऐसे करूंगा या ऐसे मैं गोल सेट करूंगा तो उसके हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इट्स नॉट अ वन डे वर्क, इट्स नॉट अ वीक्स वर्क, इट्स अ सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म वर्क। बट रिजल्ट्स आते हैं जब हम समझते हैं, उनको बताते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उससे एथलीट का भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। And very important part, how we should always tell our athlete to regulate and control and understand their emotions. So हमने obviously एक word सुना होगा, I think my fellow psychologists are also here, athletes and the participants, even sir, कि emotional intelligence.
इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. We talk about IQ level, intelligence quotient. We talk about, but we forget about EQ, which is intelligent quotient, which is directly connected to your emotional intelligence. तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है कि आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंड, टू मॉनिटर योर इमोशंस एज वेल एज अदर पीपल इमोशन. तो our sports psychologist need to be emotionally intelligent to be able to understand his as well as athletes emotions. तभी आप उनको बता पाओगे कि देखो भाई ये आपके जो इमोशंस है, दिस इज डिसफंक्शनल या दिस इज फंक्शनल, दिस इज हेल्पिंग यू, दिस इज नॉट हेल्पिंग यू. क्योंकि इमोशंस का बहुत रोल होता है, विच आई थिंक मेजोरिटी ऑफ एथलीट्स, मेजोरिटी ऑफ अस, नॉट ओनली एथलीट्स, मेजोरिटी ऑफ अस निग्लेक्ट इमोशनल पार्ट. कि हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस कितना जरूरी होता है. वी टेंड टू डाइवर्ट फ्रॉम इट और टेंड टू नॉट पे मच अटेंशन टू इट. कि जब हम गुस्सा हो रहे हैं तो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम कैसे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं. जो इमोशनल इमोशनल एक्सपीरियंस मैटर्स. कि जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा अग्रेशन लेवल हाई या लो है, तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि मैं टेंशन में था या नहीं था, कि मैं बहुत खुश था या मैं थोड़ा अपने आप को काम करके मैं खेल रहा था. तो दैट मैटर्स. तो ये चीज भी एथलीट को समझ में आनी चाहिए, एंड दैट इज आवर रोल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हेन यू कंट्रोल योर इमोशन, व्हेन यू रेगुलेट योर इमोशन, योर परफॉर्मेंस विल ऑल्सो vary. It can be debilitative also, it can be facilitative also. Debilitative मतलब इमोशनल एक्सपीरियंस आपके परफॉर्मेंस नीचे भी कर सकता है, और फैसिलिटेटर मतलब उठा भी सकता है. तो बिफोर रेगुलेटिंग इमोशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू नो, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट आवर इमोशनल एक्सपीरियंस की हम क्या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे इमोट कर रहे हैं इन वेरियस सिचुएशंस. एंड आई थिंक वी ऑल डील विद प्रेशर, एंड वी आर वेरी accustomed to this word प्रेशर. की एग्जाम का प्रेशर, कभी इसका प्रेशर, कभी ये वेबिनार का प्रेशर, कभी वेबिनार सुनने का प्रेशर, कभी एक जॉब का प्रेशर. तो एथलीट्स को भी एक प्रेशर होता है, प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट का प्रेशर, फिर कोच देख रहा है उसका प्रेशर, एंड मेरा टीममेट मुझसे अच्छा कर रहा है या मेरा ओपोनेंट मुझसे अच्छा कर रहा है उसका प्रेशर. सो वी हैव टू ऑल्सो एजुकेट आवर एथलीट कि हम आप उसको डील कैसे करो. तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, बट आई विल नॉट गो इन मच डिटेल अबाउट इट. सो इसमें प्रेशर आपका मेन होता है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है, आप गोल ओरिएंटेड हो या ईगो ओरिएंटेड हो या आप टास्क ओरिएंटेड हो, उसमें भी काफ़ी मैटर करता है. अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लेट एथलीट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो क्या चाह रहा है एंड वॉट ही वॉन्ट्स एंड वॉट ही इज एक्सपेक्टिंग. देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू मॉडिफाई, वी हैव टू हेल्प हिम, वी हैव टू चेंज हिज पर्सपेक्टिव, वी हैव टू हेल्प हिम इन अ वे कि उन्हें समझ में आए कि yes, this is how, and this is when I can deal with pressure. So what, when, how becomes very important for an athlete कि कैसे मैं प्रेशर डील करूँ. क्योंकि आई थिंक लास्ट वीक की बात है, आई हैड एन एथलीट, इज अ स्विमिंग एथलीट, एंड ही इज नॉट एबल टू डील विद द प्रेशर इन प्रैक्टिस इटसेल्फ. उनको लग रहा है, एंड ही वाज सो एंशियस. तो बेसिकली I have with me the mood cards and also the anxiety cards, जिसमें there are symptoms meaning उसमें indications होते हैं, जैसे pounding heartbeat या breathing rate बढ़ना, वो सब उसमें एक words लिखे रहते हैं. So I tend to give them कि आप इसमें चूज करो what you feel normally before a practice or a competition session. तो I was shocked, even I was surprised कि practice से पहले, and I think there are more than 32 cards, to be अप्रोक्सीमेट अराउंड 32 कार्ड्स हैं उसमें, जो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंजाइटी के एंड स्टेट एंजाइटी के. तो उसमें उन्होंने, यू वोंट बिलीव, उन्होंने 23 कार्ड्स सुनाए, विच वाज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव एंजाइटी एज वेल एज स्टेट एंजाइटी, विच वाज, एंड ऑल्सो उनके सोमेटिक सिम्टम्स की, उनकी रोंगटे खड़े हो गए, गूजबम्स आ गए, या फियर आ गया, या दे वर नॉट एबल टू कॉम्प्रहेंड द सिचुएशन, उनकी मसल्स टाइट हो गई. तो वो प्रैक्टिस में ही प्रेशर डील नहीं कर पा रहे थे. तो देयर इज ऑल्सो वन केस कि कुछ एथलीट्स होते हैं जो प्रैक्टिस में भी डील नहीं कर पाते, बिकॉज उनको होता है कि मुझे कल से ज़्यादा इंप्रूव करना है, मुझे ये मेरा टारगेट है, मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट ये है, पोडियम फिनिश इन अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. उनके उनके उस लेवल तक हम अपने आप को ओवर ट्रेन करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि हम वहां तक पहुंच जाएं. बट व्हाट अबाउट योर रिकवरी, व्हाट अबाउट योर pressure, what about your
इंजरी पार्ट, तो वो एथलीट हम निग्लेक्ट कर देते हैं. अगेन आवर रोल इज टू ऑल्सो एजुकेट देम कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है. तभी हम इंटर डोमेन भी जब काम करते हैं तो सबका अपना रोल आ जाता है. बट आवर रोल होता है कि उनको समझाना कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको क्या समझाना चाह रहा है, न्यूट्रिशन मैम ऐसा क्यों कह रही हैं, या आपके दोस्त एसएनसी हो ऐसा क्यों कह रहा है. क्योंकि वो एथलीट को ये होता है कि अगर मुझे इंजरी है या मेरा कंपटीशन है, मैं बस ट्रेनिंग करता रहूँ. उस चीज़ का बहुत प्रेशर हो जाता है. तो वो डील करना भी एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल हो जाता है. एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उनको समझाना कि प्रेशर को डील करना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे वो प्रैक्टिस के बाद हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन में. एंड अगेन जब हम ये चीज़ फॉलो करते हैं ऑब्वियसली हमारा फोकस बढ़ता है, तो हमारा एंजाइटी कंट्रोल हो जाता है. व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर बिहेवियर, हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है. व्हेन वी आर एबल टू प्रॉपरली रेगुलेट आवर इमोशंस एंड देन वी डील विद प्रेशर, तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है. ओके, सो टाइम फॉर अ क्विक एक्टिविटी. सो इसमें आई वुड लाइक एवरीवन टू पार्टिसिपेट. ठीक है, सो अब इसमें क्या होगा एक्टिविटी में, देयर विल बी 3 फोटोज टोटल, बट पहले मैं 2 फोटोज दिखाऊंगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू विल हैव 3 मिनट्स. ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस फोटोज को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, यू हैव टू डू अ माइंडफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटोज कि उस फोटो में क्या है, कैसे है, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन, जो भी आप नोटिस कर रहे हो, फ्रॉम स्मॉल स्मॉल डिटेल्स टू ओवरऑल डिटेल, जो भी है, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू जस्ट सी फोटो में क्या है, आपको क्या लग रहा है. एंड जो भी है आपको लग रहा है, आप यू कैन टाइप इट ऑन द बॉक्स, चैट बॉक्स, और यू कैन ओपन अनम्यूट योर सेल्फ एंड ऑल्सो टेल अबाउट कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो. सो मैं फोटोज अभी शोकेस करूंगा एंड आपके पास 3 मिनट्स होंगे टू ऑब्जर्व बोथ द फोटोज. एंड यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट, इफ यू हैव अ पीस ऑफ पेपर विद यू, यू कैन राइट इट डाउन. इफ यू आर एबल टू रिमेंबर कि क्या है कैसा है, यू कैन टेल अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो यू विल हैव 3 मिनट्स. सो दीज आर द फोटोज. So your time starts now. Just have a mindful observation. Observe, mindfully observe, अच्छे से ऑब्जर्व करो 3 मिनट तक. क्या दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं, कौन कौन चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग. Then take a note of it. Then after 3 minutes, when time is over, we'll have a discussion on it. And I would request everybody to please participate. So we'll have an interaction after 3 minutes. So in the first picture, for the very first second, I saw a black colored man. I mean the dark man with the air instrument. And the very second, I saw the white face surrounded by the shadow. And that's all for the first picture. Then in the second picture, first I noticed a single face, and then it was through my peripheral view. When I was looking at the first picture, I saw a full face, and then when I looked at the second picture, it was double faces facing each other. And then upon looking at it carefully, I saw a candle stand. Yeah, that's all for my observations. Okay. Good. Thank you. Anyone else? Please, anybody can react. Anybody can interact. Whatever you want to talk, please. Okay. Anyone else want to go? Okay. So I I hope सबने अच्छे से ऑब्जर्व किया. एंड देयर वर फ्यू आंसर्स आल्सो जो चैट बॉक्स में भी थे. एंड विदिशा आल्सो एनलाइटेंड अस, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. सो हम देख पा रहे थे कि व्हाट विदिशा वाज टॉकिंग अबाउट वाज हर ऑब्जर्वेशन. देन वी कैन सी इन द चैट बॉक्स कि अंकिता दहिया, सहीरा का, देन निशिता मैम का, देन
गौरव का, अभिषेक का। सो दे ऑल हैड ऑब्जर्वेशन, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि ये मैन लग रहा है कि चल रहा है। वो किसी का वो, अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊँ तो वहाँ पे मुझे वो टेलर स्विफ्ट लग रही है पहले वाली में, और इट्स वुमेन, और वो एक ट्रम्पेट बजा रहा है, या मे बी इज अ टू फेस वुमेन। यहाँ पे दोनों ने अपनी नोज से बैलेंस, वो कैंडल को बैलेंस किया हुआ है। तो ये चीज है। सो इस एक्टिविटी से हम क्या सीखे हैं कि बेसिकली फोटो एक है, पर कितने सारे इनपुट्स हैं, कितने सारे इंसाइट है, कि किसी को उसमें मैन दिख रहा है, किसी में उसमें दिख रहा है कि उसकी नाक लंबी है, किसी को दिख रहा है कि एक वुमेन का फेस दिख रहा है। सो बेसिकली दिस एक्टिविटी वाज अबाउट योर परसेप्शन। दिस एक्टिविटी वाज अबाउट कि हम जो हम देखते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व, एज आई प्रीवियसली मेंशन कि ह्यूमन इज अ ऑब्जर्वेशन, आई वुड से ऑब्जर्वेशन उनका एक ट्रेट होता है कि हम सब चीज ऑब्जर्व करते हैं, हम सब चीज देखते हैं, हम सब चीज नोटिस करते हैं। बट सबका नजर एक नहीं होता है, सबका परसेप्शन अलग होता है, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। सो इसमें हम ये एक्टिविटी के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि देयर वर सो मेनी आंसर्स, बस फोटो दो ही है। हो सकता है कि सबका ऑब्जर्वेशन सेम भी है, पर अगेन उसमें काफी डिफरेंसेस थे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम एक एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं या एज अ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट काम करते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी एथलीट इज डिफरेंट, every athlete has his own perception, every athlete is from a different cultural background, every athlete has a different mindset। तो हमें उसके हिसाब से भी डील करना पड़ता है। जैसे अगर विदिशा ने बोला है कि उनकी ऑब्जर्वेशन ये है, या और लोगों ने जो टाइप किया था कि ऑब्जर्वेशन ये है, देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू डील विद देम। तो हमें उनके हिसाब से ही, तो विच वी कॉल इट एथलीट सेंटर्ड, हमें उनके हिसाब से ही इनको डील करना पड़ता है। अब मान लो कि एक एथलीट आया हमारे पास, वो बोलता है कि हाँ मैं तो ये है, मैं मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, और हम उसको उसके परस्पेक्टिव समझने के बजाय हम अपना बता रहे हैं कि नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो यही करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा, देखो हम ये ऐसे फॉलो करते हैं, ये थ्योरेटिकल है, ये सब है, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो और व्हाट हैपेंस इज, वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है, क्योंकि हम उसका परस्पेक्टिव नहीं समझ रहे। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम एक इंसान है, बिफोर अ साइकोलॉजिस्ट वी आर ऑल्सो ह्यूमन। वी ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी कि हम ऑब्जर्व करें, हम समझें, हमारी दूसरी भी एक लाइफ होती है। ऐसे ही एथलीट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इंडिविजुअल डिफरेंस एक इतना बड़ा पॉइंट है कि क्योंकि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पोर्ट्स हैं, हर हर एक में पर्सनैलिटी वाइज, हर एक में गेम वाइज, फिर आपका साइकोलॉजिकल डिमांड्स जो होती हैं, फिजिकल डिमांड्स जो होती हैं, फिर उसमें जो आपका फिजियोलॉजिकल डिमांड्स होती हैं, हर चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस इफेक्टिव हो जाती है। when we pay attention to each small detail, be it a psychologist, be it anyone, तो उसमें क्या हो जाता है कि हम समझ पाते हैं कि जैसे पहला पॉइंट था कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, कि व्हाई इज ही रिएक्टिंग दैट वे। ये बंदा तो ऐसे नहीं करता है, वो बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, और दोनों सेम पोजीशन पे खेलते हैं, दोनों एक ही गेम खेलते हैं, फिर भी दोनों का बिहेवियर इतना अलग क्यों है। वो बंदा स्कोर कर पा रहा है, ये स्कोर नहीं कर पा रहा है। ये बंदा अच्छा खेल रहा है, पर फिर भी ये अच्छा नहीं खेल रहा है। तो एट दैट टाइम वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, वो बंदा अलग है, मे बी ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, मे बी उसको हम ऐसे गाइड करें तो हो सकता है। वी कैन नॉट गाइड, और वी कैन नॉट काउंसिल अ पर्सन द सेम वे, जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ या उसको कर रहा हूँ। देयर विल बी सम डिफरेंसेस, वी हैव टू मॉडिफाई, वी हैव टू स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट, कि हम कैसे उसको कंफर्टेबल फील करवाएं, एंड कैसे हम उसको ये ट्रस्ट दिलवाए कि यस, this is what you are thinking is right, but you can try this way, whatever you're doing is right, you can do this way। तो ये एक्टिविटी वो था कि परसेप्शन सबका अलग होता है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी। तो एक और पार्ट है एक्टिविटी का, विच विल बी फॉर 1 मिनट, ठीक है। सो देयर विल बी वन मोर फोटो। सो अगेन आई वुड वांट यू टू ऑब्जर्व इट फॉर 1 मिनट ओनली, ठीक है। 1 मिनट तक ऑब्जर्व करना और देखना आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है क्या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द फोटो, and you can start observing, and your time is, and this is, you can observe, be mindful when you're observing,
और आपके पास 1 मिनट है। Okay, so one by one, whoever wants to uh, enlighten us what they observed, kya laga, you can type in the chat box or maybe you can unmute yourself and you can raise your hand and share your thoughts. Anyone? कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, just your perspective. Yes, Vidisha. So it looks like a part of a hill to me, maybe because of the clouds, and the sun is on the right, and the camera is placed somewhere under the trees because it's under the shadow. Oh, I could notice this only. Okay, good. One side of the picture is sunny, one side is shady, clouds are there in the sky, pictures full of green. Okay, good, सही रहा. Or anyone else want to add on something? To one it looks like hill, किसी को ग्रीनरी लग रहा है, किसी को शेडी भी लग रहा है. Yes, it's a sunny day, clouds भी sky में है. Yes. Yes, Sandeep sir, you can start. So, उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा. संदीप कुमार just Where land meet the sky. Good, very good observation. yes. Yes, Sandeep. Yes, Sandeep, you can go ahead. Unmute नहीं हो रहा तो you can type in the chat box. I think संदीप की साइड से कोई प्रॉब्लम है. Mannat, it is related to nature, full of greenery, it's a sunny day. Good. One more minute, then we'll again. This is open for everyone. Please go ahead. Okay. So if there is no more responses, then so again, it's the same thing, continuation of the same activity. कि पहले में क्या था कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था कि आप देखे तो उसमें हाँ ये भी दिख रहा है, हाँ वो भी दिख रहा है, ये भी हो रहा है, हाँ दूसरी फोटो में भी तो काफी कुछ है, इल्यूजन टाइप का है, ये है, कॉम्प्लेक्स सिटीज हैं, फिर भी हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. दे आर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन और हार्ड सिचुएशन, फिर भी हम उसमें कुछ ना कुछ सीख के ऑब्जर्व करके वी आर ट्राइंग टू कॉम्प्रहेंड इट. और ये चीज थोड़ी सिंपल फोटो जिसमें हम देख सकते हैं एक पेड़ है, काफी सारे पेड़ हैं, जैसे बोला भी कि एक हिल का पार्ट दिख रहा है, या इट्स अ सनी डे, देयर आर सो मेनी क्लाउड्स एंड देन सो मच ग्रीनरी एंड मे बी हम नेचर से काफी करीब हैं. और उसमें और भी काफी ऑब्जर्वेशन होंगे लोगों के, जो लोगों ने देखा भी होगा कि उसमें दो तीन कुछ चीजें दिख भी रही हैं जो बिल्कुल हिल टॉप पे है और काफी ग्रास है और हम चाहते हैं कि ऐसा रहे. आजकल जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है हम पेड़ नहीं देख पाते हैं. सो इट कैन बी एनीथिंग. सो इट अब इस हमें इसमें क्या समझने की जरूरत है इस एक्टिविटी के थ्रू कि वन सिंपल
चीजें भी हमारे सामने होती हैं, देन ऑल्सो वी कैन थिंक इन अ वेरी इनोवेटिव वे, वी कैन थिंक इन अ वेरी क्रिएटिव वे कि हाँ यार ये ऐसा भी तो हो सकता है, वी कैन गो डीप इनटू इट कि यार इसको हम ऐसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो एक एथलीट जो होता है, दे टेंड टू बी वेरी क्रिएटिव। तो कभी कभार क्या होता है कि हम आपस में बात, एथलीट्स लोग बात में बात नहीं कर पाते हैं, या आपस में बात नहीं कर पाते हैं कि या अगर मैं ये चीज अपना शेयर करूंगा तो मे बी मेरा मजाक बन जाए, या वो बोलेगा क्या सोच रहा है यार, तो प्रैक्टिस पे ध्यान दे, क्या है ये क्यों कर रहा है। तो दीज आर सम फैक्टर्स। तो अब इसमें हमें क्या पता चलता है कि वी हैव अ टेंडेंसी टू बी क्रिएटिव, टू बी इनोवेटिव, जो कि हम उसको अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, और हम अपने कंपटीशन के टाइम यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इसको इनकलकेट नहीं करेंगे, हम तब समझेंगे नहीं कि हमारे अंदर ये है। when we don't have a self awareness कि we have this tendency to do it, तब तक हम वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो योर परसेप्शन मैटर्स। तो एवरी एथलीट्स परसेप्शन मैटर्स, कि वो क्या सोच रहा है, हम उसके एंगल से क्या समझ रहे हैं, एंड हाउ वी कैन हेल्प देम। सो दिस वॉज वन वे, वन स्मॉल एक्टिविटी, एंड आई होप मैंने बोर नहीं किया हो इस एक्टिविटी से। बट इस टेक अवे मैसेज ये था कि every perception matters, and when we are able to understand it, when we are able to realize कि हाँ this is what is, हम एक पोजीशन पे होके भी there are so many thoughts, so many insights, so many inputs coming from an athlete or coming from anybody। तो अगर हम उसको समझें, ना कि हम कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसको समझे कि हाँ ये है या वो सब है, तो an athlete can unleash his potential which he is also not aware of। तो सेल्फ अवेयरनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक और वर्ड बोला था, यू हैव टू बी माइंडफुल व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइंडफुलनेस में बहुत 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, व्हिच इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बीइंग नॉन जजमेंटल, टेकिंग अ नॉन जजमेंटल अप्रोच, एंड लास्ट इज वी हैव टू एक्सेप्ट। Acceptance become a big challenge, big, I would say big loophole, कि यार एक्सेप्ट तो होता ही नहीं है। वी कैन नॉट एक्सेप्ट डिफीट, वी कैन नॉट एक्सेप्ट फेलियर, वी कैन नॉट एक्सेप्ट कि हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, until unless we accept it, until unless we are mindful of what is happening। यानी any athlete is mindful कि क्या हो रहा है, he is not, when he is able to understand what is going on। तो सेल्फ अवेयरनेस जब उसका होता है, when he is able to be aware about okay this is what is happening, then you can see his perception will also change, his perspective will also change, and then our role come into play कि हाँ उसको समझ तो आ गया, अब उसको पीक परफॉर्मेंस पे लेके जाना है, या उसको अब ग्रेजुअली पीरियडाइज करके उसको इम्प्रूवमेंट देना। तो दिस वाज वन स्मॉल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड कि एवरी परसेप्शन मैटर्स। एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग or okay, so I'll just move ahead। So जो पिछली स्लाइड थी, इट वाज फोकसिंग ऑन ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, कि क्योंकि काफी स्पोर्ट्स हैं, जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स आ जाता है, देन वाटर स्पोर्ट्स आ जाता है, देन उसमें आपका प्रिसीजन स्पोर्ट्स आ जाता है, एंड देन टीम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें काफी सारा फुटबॉल, बास्केटबॉल, बहुत कुछ आ जाता है। सो अगेन नाउ विल बी फोकसिंग ऑन प्रिसीजन स्पोर्ट विच इज शूटिंग। तो आई एम वेल आई एम वेल कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको पता रहेगा कि शूटिंग इज वन ऑफ द वेरी जिसमें कॉन्सेंट्रेट और फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, और साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आप उसमें आप मेंटल ट्रेनिंग का कंपोनेंट कितना यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में विल गो इनटू डिटेल कि व्हाई मेंटल ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट इन शूटिंग स्पोर्ट्स, व्हाई मेंटल कंडीशनिंग इज इम्पोर्टेंट इन शूटिंग स्पोर्ट्स। अगेन तो हर स्पोर्ट्स के अलग साइकोलॉजिकल डिमांड्स होते हैं, हर स्पोर्ट्स की अलग अलग रिक्विजिट होती हैं, अलग अलग स्पोर्ट स्पेसिफिक अलग अलग ड्रिल्स होती हैं। अगर हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो वी हैव टू प्ले अलोन, जैसे कॉम्बैट में अगर बॉक्सिंग ले लो, या शूटिंग स्पोर्ट्स ले लो, या बैडमिंटन ले लो, रैकेट स्पोर्ट्स में बैडमिंटन ले लो, या वाटर स्पोर्ट्स में आप रोइंग ले लो। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्या होता है, यू आर रिलाइंग ऑन योर सेल्फ, योर कॉन्सेंट्रेशन इज रिलाइंग ऑन योर सेल्फ, योर अटेंशन फोकस इज ऑन योर सेल्फ। आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है, जो आपका मोटिवेशन है, दैट इज यू।
तो द ड्राइव दैट कम्स फ्रॉम विद इन, आप उसको मोटिवेट ज़्यादा करते हो, क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट में आपके टीममेट्स नहीं रहेंगे, को एथलीट्स होंगे, यस, बट ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन यू आर द ओनली वन। कोच, आपके जो कोच होंगे वो भी आपके पीछे बैठे होंगे, वो भी आपको इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना आप अपनी खुद की हेल्प कर पाओगे ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन। सो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में डिमांड्स अलग हो जाती हैं, टीम स्पोर्ट्स में डिमांड्स अलग हो जाती हैं, पैरामीटर सेम रहते हैं कि मोटिवेशन तो वहाँ भी चाहिए, मोटिवेशन तो यहाँ भी चाहिए, कॉन्फिडेंस तो वहाँ भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो वहाँ भी होना चाहिए। ऐसे काफी क्वेश्चन भी उठते हैं, एंड इट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि आप साइकोलॉजिकल डिमांड्स कह रहे हो होने चाहिए स्पोर्ट्स की, बट कॉन्फिडेंस तो हर जगह चाहिए सर, फोकस भी हर जगह चाहिए, और कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, रिलैक्स भी हमें हर जगह रहना है। तो ये साइकोलॉजिकल डिमांड्स का क्या रोल है, और कैसे ऐसे ऐसे आप क्यों कर सकते हो? तो दीज आर फ्यू, सॉरी, दीज आर फ्यू आई वुड से इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डिमांड्स जो एक प्रिसीजन स्पोर्ट्स में चाहिए होते हैं। तो सिंस प्रिसीजन स्पोर्ट्स मीनिंग कि आपको एक टारगेट पे हिट करना है, तो आपको जो अटेंशन स्पैन होना चाहिए, जो आपका अटेंशन फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी नैरो, एंड यू, उससे क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। व्हेन यू हैव अ ब्रॉड विजन, व्हेन यू हैव अ ब्रॉड अटेंशन फोकस, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है वो काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी क्यूज। तो आपका अटेंशन स्पैन बड़ा है, मतलब आपके पास क्यूज भी बहुत सारे हैं, और क्यूज मतलब होता है कि जो हमें जहाँ जिस पे फोकस करना है। अब जैसे मैं फुटबॉल की बात करूँ, तो फुटबॉल में इफ आई एम प्लेइंग एज अ मिडफील्डर, तो माय अटेंशन स्पैन शुड बी ब्रॉड, क्योंकि आई कैन नॉट ओनली गो फॉर वन कि हाँ ये सामने खड़ा है इसको पास दे दो, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि उसके पीछे कितना कौन सा मैन है, मुझे वो भी देखना पड़ेगा कौन कौन फ्री है। तो मुझे उसके हिसाब से अपना अटेंशन जो फोकस है वो ब्रॉड करना होगा, जिसमें मेरे पास रेलेवेंट क्यूज भी होंगे और इनरेलेवेंट क्यूज भी होंगे। रेलेवेंट क्यूज वो हैं जो मुझे टारगेट करने हैं, जिसको मुझे पास देना है, या जिसको मुझे अप्रोच करना है। इररेलेवेंट क्यूज वो होते हैं जो मुझे अवॉइड करना है, और मैंने उसको पास दिया और मैन आगे आ गया तो इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है शूटिंग स्पोर्ट्स में या प्रिसीजन स्पोर्ट्स में कि हमारा अटेंशन फोकस बहुत नैरो रहे, क्योंकि टारगेट तो इतना है, 10 पॉइंट इतना है। अगर हम ब्रॉड कर देंगे तो हमें 1 भी दिखेगा, हमें 2 भी दिखेगा, पर हमें फोकस तो 10 पे करना है। तो हमें अपना जो अटेंशन स्पैन है वो नैरो करना है। और उसके लिए हमें कंसंट्रेशन हमारा हाई होना चाहिए, जिसके लिए काफ़ी ड्रिल्स होती हैं, जिसके लिए काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एंड जैसे मैंने पहले ही बोला कि मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में 2 फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, आपका ड्राइव और डायरेक्शन। और आपको जब पता है कि यू हैव द ड्राइव टू डू इट, एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स यू नीड द ड्राइव टू डू इट, बिकॉज ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन यू आर द ओनली पर्सन देयर, इट्स अबाउट यू, आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, एंड आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर रहे हो ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन। तो मोटिवेशन प्लेज अ ह्यूज रोल, और मेंटल ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम मोटिवेशनल क्लाइमेट उसका कैसा बनाएं, हम मोटिवेशन उसका कैसे एनहेंस करें, क्योंकि डायरेक्शन सबके पास होती है। प्रैक्टिस में डायरेक्शन होती है इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट, उसमें भी हमें काफ़ी जो चीज़ें जोड़नी होती हैं। इट्स ओके, मेक अ मिस्टेक, प्रैक्टिस में सेट योर गोल्स थ्रू वेरियस गोल सेटिंग टेक्निक्स, बट मोटिवेशन हम क्या सोचते हैं, जो एक, एंड आई हैड एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, एक एथलीट फ्रॉम आर्चरी। तो ही वाज सेटिंग हिज गोल, बहुत रोज डायरी मेंटेन करता है, ही वाज ऑलरेडी डूइंग सो मेनी वर्क, सो मेनी थिंग्स व्हिच आई वाज इंक्लूडेड इन माय प्लान, व्हिच आई वाज ट्राइंग टू इंक्लूड इन माय प्लान। तो वो ऑलरेडी कर रहा था, डायरी मेंटेन कर रहा है, कितने गोल्स करने हैं, क्या करना है, सब कर रहा था, बट उसको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था। वो कह रहा है यार मैं लिख तो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, हो तो कुछ नहीं रहा है, क्या करूँ? देन उसको मैंने बोला कि यार अपने गोल्स आप कैसे सेट कर रहे हो, व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म गोल? सर ये ये शॉट मारना है मुझे, इतने स्कोर करना है और गोल लेके आना है। गुड, जैसे लॉन्ग टर्म गोल। व्हाट्स योर शॉर्ट टर्म गोल टू रीच टुवर्ड्स इट? सर वो ये है, बस रोज 700 टारगेट करो, और मेरे 500 ही आ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि हम, टारगेट तो 700 है, आ 500 रहा है, तो उससे क्या होगा, वही प्रेशर जो हम पिछली बार बात कर रहे थे, डील विद प्रेशर नहीं कर पाओगे, आपको प्रेशर बढ़ता रहेगा, यार 700 तो बहुत दूर है, अभी तो मैं 500 पे ही हूँ, कैसे जाऊंगा मैं? फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर आपका मोटिव, डायरेक्शन चेंज हो गया ना। 700 है आपका टारगेट, लेकिन 500 से ऊपर ही नहीं आ रहा है, तो आपका डायरेक्शन ही हो गया कि यार वहां कैसे जाऊंगा मैं, आपकी ड्राइव कम हो जाएगी, तो आपका मोटिवेशन भी कम हो जाएगा।
इसलिए गोल सेटिंग से क्या होता है, वो आपका डायरेक्टली कोरिलेट होता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके गोल्स बहुत मैटर करते हैं। गोल्स को हम लाइटली नहीं ले सकते कि गोल बनाने हैं और बना दिया, हो गया, अब क्या करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप गोल जो बना रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपने जो गोल बनाया है क्यों बनाया है, उसको मैं कितना दिन में कर सकता हूँ, उसको मैं कितना स्पेसिफिक कर सकता हूँ। वो चीज़ आपको इस स्पोर्ट्स में बहुत हेल्प करेगी, आपके मोटिवेशन में। कोई नहीं, मुझे आज प्रैक्टिस में नहीं हो रहा है मुझसे, वो आप मेरा स्टांस में प्रॉब्लम आ रहा है या बैलेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ठीक है, उसको मैं इंप्रूव करूंगा, इस पे काम करूंगा। पर जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको वी डोंट डेयर आवरसेल्फ टू डू इट, वी वोंट बी एबल टू नो कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एंड वन मोर थिंग इज वी हैव टू आल्सो फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ। हम अपनी स्ट्रेंथ को फोकस ही नहीं करते, हम क्या करते हैं, बस एरियाज टू इम्प्रूव, एरियाज टू इम्प्रूव, वीकनेस वीकनेस वीकनेस, उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। वी शुड फोकस ऑन द बोथ, सेट गोल्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपका दोनों से ही आपका मोटिवेशन कनेक्टेड रहेगा। स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड देन उसके हिसाब से आपका मोटिवेशन चेंज होता है। आपने गोल अपना कम कर दिया, चलो यार 500 ही हो रहा है, 700 तो हो नहीं पा रहा है, चलो आज मैं अराउंड 550 कर लेता हूँ, देन 510, ओके 520 कर लेता हूँ, देन यू हिट 520, देन यू यस आई हैव डन इट, देन अकॉर्डिंगली यू इंक्रीज योर गोल्स। अब 700 का रखा है, आप जा ही नहीं पा रहे हो 600, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बॉटम लो हो जाएगा। फिर आपको वही एंजाइटी होगी, यार कंपटीशन आ रहा है, क्या करूँ, अभी ये हिट नहीं हो पा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं मुझे अब, अगर मैं 2 घंटे मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे अब 4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी अगेन, विच लीड्स टू ओवर ट्रेनिंग, विच लीड्स टू बर्न आउट, विच लीड्स टू अगेन इंजरी। फिर आप जो आपने टारगेट सेट किया था 700, वो भी चला जाता है। तो दिस थिंग्स नीड टू बी देयर इन योर मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। उससे और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका मेंटेनिंग एंजाइटी एंड अराउजल। एंड आई थिंक एंजाइटी का मैंने डिस्कस किया था। अराउजल आल्सो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन शूटिंग स्पोर्ट्स, क्योंकि अराउजल जब हाई हो जाता है, वी टेंड टू गेट टू एक्साइटेड, या हो गया, चलो चलो चलो। जैसे फुटबॉल में यू नीड मोर ऑफ अराउजल, एंड क्रिकेट में आपको मेंटेन करना पड़ता है कि ज्यादा आप एक्साइटेड हो गए तो यस, समटाइम यू नीड टू डू इट, समटाइम यू नीड टू गो। तो हमें समझना पड़ता है, क्योंकि हर सिचुएशन में आपके अराउजल अलग होंगे। Maybe you need some activation. Maybe you need some relaxation. So there are various mind to muscle relaxation technique, mind to muscle activation techniques. Then you have muscle to mind relaxation techniques. You have muscle to mind activation techniques. तो वो डिपेंड करता है इन वेरियस सिचुएशंस, डिपेंड करता है इन व्हाट एनवायरनमेंट यू आर इन व्हाट फेज यू आर इन। तो शूटिंग में अगर अराउजल बढ़ जाता है, देन यू टेंड टू डाइवर्ट। तो इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब क्या होता है कि अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो अराउजल कम ही होना चाहिए, अगेन परसेप्शन जो हमने बात की थी, इंडिविजुअल डिफरेंस। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एथलीट टू एथलीट, कि हम उनको समझना पड़ेगा कि हाँ, इनका जो ये अराउजल लेवल है, दिस इज उनके फैसिलिटेट कर रहा है परफॉर्मेंस, उनको हेल्प कर रहा है परफॉर्मेंस। देन वी हैव टू अकॉर्डिंगली मेंटेन इट, वी हैव टू बी कंसिस्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा कि हाँ ये परफॉर्म कर लेते हैं। ज्यादा हो रहा है देन वी हैव टू कंट्रोल इट, ज्यादा अराउजल हो रहा है जिसकी वजह से स्कोर डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भी मेंटेन करना पड़ता है। कम हो रहा है देन वी हैव टू एक्टिवेट इट। तो वो हर एक एथलीट के अलग अलग होता है, हम उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि शूटिंग में तो कम ही होना चाहिए, हर स्पोर्ट्स में कम ही होना चाहिए। यस होना चाहिए, बट क्या एथलीट उसमें उसको अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या एथलीट को अच्छा लग रहा है, क्या एथलीट को वो थोड़े टेंस्ड होके वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या एंग्जाइटी कितना कम होना चाहिए। तो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस मेंटल ट्रेनिंग, कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द आइडियल लेवल, आइडियल अराउजल लेवल, कि उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। काफी थ्योरीज हैं इसमें, काफी काम किया है, काफी रिनाउंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर, कि अराउजल एंड परफॉर्मेंस हैव अ वेरी गुड कनेक्शन, and it varies from sport to sport, it varies from athlete to athlete, it also varies from position to position। आपके स्पोर्ट्स में आपका जो किस टाइप का स्पोर्ट्स है, या आपका कौन सी कैटेगरी का स्पोर्ट है, या कौन सा पोजीशन आप खेल रहे हो स्पोर्ट्स में, या उसमें भी बहुत वेरी करता है। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन वी हैव टू मेक अ मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम और साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और
बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें एमएसपी भी होता है, मैक भी होता है, वो तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो फॉर इट। एंड लास्ट पॉइंट, कंट्रोल ओवर कॉन्शियस थॉट्स। ओवर थिंकिंग हो रही है सर, मैं कर नहीं पा रहा सर, ये हो रहा है सर, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो रही है सर, क्या होगा, कभी आने वाला है। तो दीज आर सम थॉट जो उनको रोक देता है। तो देयर आर वेज वेयर यू कैन हैव कंट्रोल ओवर योर कॉन्शियस थॉट्स। और कॉन्शियस थॉट जो होते हैं, जो हमें पता होता है कि क्या हो, कैसा हो, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, क्या करूँ। तो what you tell yourself, what you use, what affirmations you used, what self-talk words you use, that matters, because mind body has a connection. Whatever, however you're reacting, however whatever your brain is telling you, आपकी body वैसे react करेगी। तो it's better कि आपको पता रहे कि what thoughts you are getting, whether it is productive thoughts, whether it is unproductive thoughts, whether that thought is helping you, that thought is not helping you। क्योंकि मेरे पास काफी एथलीट्स आते हैं जो बोलते हैं सर हेडेक हो रहा है, रात भर सो नहीं पाया, इतना ओवर थिंक हो गया। क्या रीजन होता है ओवर थिंक करने का? सर प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है, सर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बहुत थॉट्स, उनको क्या थॉट्स आ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं उसमें, तो वो मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हमें पता रहेगा, तो अगर हमें पता है एक चीज की, एक चीज हमें इफेक्ट कर रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो बाद में वो सेम थॉट नहीं आएगा, वो वापस थॉट आएगा। बट इट्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द थॉट, कि पहले उसकी इंटेंसिटी कितनी है और कितना अफेक्ट कर रहा है, पर आपने ये चीज अप्लाई किया, अब उसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हो गई। क्योंकि ब्रेन में तो एक्टिविटी होती रहेगी, ब्रेन इज ऑलवेज फंक्शनिंग, वो चलता रहेगा, कभी ये है कभी वो, प्रैक्टिस, डाइट वगैरह, ये वो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो वो आपको खुराफाती वो कूदता रहेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। तो कुछ भी हमें चीज बॉदर करेगी, वो पिंच करेगा। तो उस चीज पे कंट्रोल आना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली इन प्रिसीजन स्पोर्ट। क्योंकि काफी क्लाउड हो जाता है, जैसे सुबह सुबह कोहरा होता है, कोहरे कोहरे में कुछ दिखता ही नहीं है। आई थिंक जो लोग विलेज से होंगे उन्हें समझ नहीं आता है यार, सुबह जाएंगे लाइट खोलिए, या अंधेरे में जा रहे हैं लाइट खोलिए फिर भी नहीं दिख रहा है। बट जब सूरज निकलता है या सन राइज होता है, यू कैन सी कि धीरे धीरे वो पूरा हट जाता है। द रे ऑफ लाइट इज द सीम लाइन थॉट्स, कि हाँ यार ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब क्लाउड है, तो क्लाउड में तो ऐसे मारते रहो, आपने कोई चोट लगेगी। अगर हमने मान लो पता ही नहीं दिख ही रहा, हमने आंखें बंद कर रखी और हमने अपने आप को ही मार लिया। अगेन, इसको अगर हम ब्रॉड में बोले तो सेल्फ हार्म हो जाता है, सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आ जाते हैं। तो वो चीज आपको डेबिटेटेड वे में ले जाती है, फिर आपको वो हेल्प नहीं करती। तो ये फोर्थ थिंग्स हैं विच इज आई थिंक प्री रिक्विजिट फॉर दिस शूटिंग स्पोर्ट्स एंड प्रिसीजन स्पोर्ट, जो कि बहुत जरूरी है। इसमें और चीज भी आती है बट मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। सो ओके, सो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। आपको आपकी साइड से आई थिंक देर आर सो मेनी, काफी एथलीट्स भी हैं, काफी प्रोफेशनल्स भी हैं, और काफी काफी लोग हैं जो पार्टिसिपेट, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। कोई जनरल क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके पास आता है, या कोई जनरल क्वेश्चन कि सर क्या करें, एथलीट से आता है, वो आप शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, फिर हम आगे उस पर आगे बढ़ेंगे। जो भी आपको लगता है क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, परफॉर्मेंस से लेकर या कंपटीशन से लेकर, प्रैक्टिस से लेकर, या एथलीट आपको पूछता है, या आप पूछना चाह रहे हो, यू कैन गो हेड, द फ्लोर इज ऑल योर्स। ओके, यस, गौरव कुमार। सर ज्यादातर शूटर्स का प्रॉब्लम रहता है कि वो ये कहते हैं कि हम साइड परफेक्ट दिखते हैं, फिर भी शॉट हमारे परफेक्ट नहीं आते हैं। ओके, तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, शूटर की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या फिर उनका कुछ और कोई प्रॉब्लम रहता है? साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल ऑल्सो, बट वो डिपेंड करता है अगेन, कि हमें समझना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, आप उस समय क्या सोच रहे हो, कि टारगेट आप क्या सेट कर रहे हो, आप गोल्स क्या सेट कर रहे हो। तो वो चीज हमें देखनी पड़ती है। तो इट कैन वेरी, वो एथलीट पे भी डिपेंड करता है कि उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, वो उसका सिचुएशन क्या है, कौन कौन सी सिचुएशन में हो रहा है।
तो हर चीज हमें पूछना पड़ेगा। एंड फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है, फिर आपको नर्वसनेस भी हो सकता है। इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल। इट डिपेंड्स ऑन द एथलीट एंड वी हैव टू जस्ट टॉक टू हिम कि पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अरे सर, मेनी एथलीट्स को लग रहा है कि ये Q&A मतलब अभी एंड ऑफ द सेशन है, दिस इज द हाफ, हाँ, यस। बिकॉज काफी लोग लेफ्ट हो रहे, और उसके बाद अभी हाफ सेशन हुआ है, हाफ सेशन अभी बाकी है। आई थिंक यू कैन कंटिन्यू सर। ओके, ठीक है। और आपका क्या क्वेश्चन है सरोजनी? अभी क्वेश्चन ले हेलो लेता हूँ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, एक्चुअली हम जब प्रैक्टिस करते हैं वी गो विद द फ्लो, लाइक हम सबकॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, वी हैव अ टास्क एंड वी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू इट। हम्म, बट मैच में क्या होता है ना, वो एक नर्वसनेस वो रहती है एंड वी नो हाउ टू कोप विद इट। बट शूटिंग जैसे होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, तो मैच में क्या होता है, वी बिकम सुपर कॉन्शियस। यस। तो वो सुपर कॉन्शियस को हम अपने प्रैक्टिस में कैसे इंक्लूड करें कि लाइक इन मैच दैट बिकम्स नॉर्मल फॉर अस। ओके, ठीक है। सो आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। आपका जो कॉन्शियस वाला क्वेश्चन है, अभी हम सेशन कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। बट जस्ट मैंने ये पॉज इसलिए लिया था जस्ट टू सी कि और इसके, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस भी देंगे और इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं जो एटलीस्ट को आते हैं, तो हम वो एड्रेस करेंगे अंडर सेशन। सो सरोजनी, गौरव एंड साहिरा, आई विल गेट बैक टू यू डेफिनेटली एंड ऑफ सेशन में जब हम क्यू वाला राउंड रखेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं एथलीट से कि वाई आर वी नॉट एबल टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉम्पिटिशन, प्रेशर को कैसे हैंडल करें और कंपटीशन को फेस कैसे करें, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू गाइस जस्ट एडेड, ठीक है। और उसके लिए आई गेट बैक टू यू लास्ट लास्ट सेक्शन में, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो ये 3 मेजर क्वेश्चंस हैं या जनरल क्वेश्चंस हैं, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं और कैसे हम एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इस पे काम कर सकते हैं। सो कंपटीशन में हमें क्या करना होता है? सो व्हाट हैपेंस इज वी हैव टू एस्टेब्लिश अ प्लान, वी हैव टू सेट गोल्स, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? वी हैव टू गो फॉर अ गुड प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव होके प्लान करना पड़ता है कि स्पेसिफिक होके प्लान करना पड़ता है। जैसे कि अभी सरोजनी ने बोला भी था कि हमें प्लान करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो, और उसकी वजह से हम सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि बेसिकली जो हम प्लान बनाते हैं, सो इट स्टार्ट फ्रॉम योर प्रैक्टिस, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर प्रैक्टिस। सो हम क्या करते हैं जनरली कि अगर हम गोल सेट कर रहे हैं तो कभी कभार क्या होता है कि हम गोल्स ऐसे सेट कर लेते हैं अपने लिए तो हमें वो प्रैक्टिस में कभी किया ही नहीं होता। प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम? प्रैक्टिस में वी वर्क ऑन आवर टेक्निक, वी वर्क ऑन आवर मोर ऑफ स्ट्रेंथ एंड फिजिकल कंडीशनिंग। टेक्निक वाइज, स्किल वाइज हम लगे रहते हैं। शूटिंग लगे, मतलब शूटिंग में बात करने लगे रहते हैं, शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट, 10 सीरीज शॉट। उस पर हम देखते हैं कि हमारा ये शॉट है, ये टारगेट हो गया, ठीक है। बट उसमें हम गोल्स क्या सेट करते हैं? द स्कोर, कि इतना स्कोर हमारा टारगेट है, इतना स्कोर आना चाहिए। कभी कभार हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये स्टांस पे काम करना है या इस पे काम करना है, हमारे एसएनसी ने बोला कि ये करना है, न्यूट्रिशन मैम ने बोला है कि ये खाना है, तो वो चीज फिर हम ऐड ऑन करते रहते हैं। बट उसको कभी कभार हम इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं करते जितना हम अपने ट्रेनिंग रेजाइम को फॉलो करते हैं। तो होता क्या है कि एथलीट, इफ ही वांट टू सक्सीड इन अ कंपटीशन, सिर्फ ट्रेनिंग इज नॉट ओनली द थिंग वी हैव टू फोकस ऑन। हमें पूरा प्लान बनाना पड़ता है, ओवरऑल होलिस्टिक प्लान बनाना पड़ता है कि जिसमें हम एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, आपका फिजिकल कंपोनेंट, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, सबको एक ही इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो वाई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन द प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस में हमारे पास प्रेशर नहीं होता है। प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं? वी कैन बी मोर फ्री माइंडेड रादर देन इन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्योंकि प्रेशर, एक नई सिचुएशन आ जाती है कि हम कहीं और खेल रहे हैं, तो यार मेरे लिए नई जगह है, मुझे पता नहीं कैसे होगा, बस चलो कर लेंगे, अच्छा ही कर लेंगे।
नई जगह एक्सपेक्टेशंस हैं, या वो आप कंपटीशन आपका लास्ट कॉम्पिटिशन अच्छा नहीं हुआ है, या अगर ज्यादा अच्छा होगा तो आपको लगता है कि मुझे वो डिफेंड करना है, तो काफी मतलब एपी सेंटर्स होते हैं उस प्रेशर के। बट वो चीज हम प्रैक्टिस में प्रेशर नहीं ले पाते हैं, चल ठीक कोच से डांट देंगे या बोल देंगे, हम कर देंगे। हम वो हमारा फेयर नहीं होता है कि अगर हमने ये शॉट इतने शॉट नहीं करे तो कुछ जा रहा है हमारा, और हमने इतने शॉट नहीं करे तो कुछ हमारा नुकसान हो रहा है। वो चीज हम ज्यादा वो नहीं करते, माइंड नहीं करते प्रैक्टिस में। बट वही चीज हमें क्या करना चाहिए, वी शुड इलीजियसली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हम डरते हैं कि हमसे गलती ना हो जाए, बिकॉज प्रैक्टिस में आप गलती कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने गोल्स मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बना सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन किया, वी शुड नो व्हाट आवर स्ट्रेंथ इज। हर एक सेशन में ऐसा नहीं है कि आपकी वीकनेस ही निकलेगी। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आप हर एक शॉट मार रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ क्या थी। आप अगर एक सीरीज कर रहे हो तो आपका क्या लगा कि हाँ दिस वाज माय स्ट्रेंथ टुडे, दिस वाज माय गुड पॉजिटिव ट्रेट, बट ये मेरा एरियाज टू इम्प्रूव। नेवर यूज द वर्ड वीकनेस, always use the word areas to improve. Which area? Okay, I'm not good enough, but I need to improve on it. If I'm good at it, I need to be consistent on it. Just how you plan, just how you set goals, just how you go specifically into each and every skill, each and every technique. अब चलो प्रैक्टिस में चले गए, मार दिया तो अच्छा यार 700 तो आ ही जाएगा, चलते हैं। कंपटीशन में क्या करें सारा, क्योंकि कंपटीशन में हमारा प्लान रहता है कि वी हैव टू परफॉर्म वेल, वी हैव टू डू वेल, एंड हमारा अपना बेस्ट देना है और अच्छा स्कोर लाना है। बट व्हाट अबाउट द प्लान, वॉट एवर वॉट यू डिड इन प्रैक्टिस, उसका क्या हुआ? वो प्रैक्टिस के लिए नहीं है। दैट प्रैक्टिस विल इंक्लूड इन योर कॉम्पिटिशन। प्रैक्टिस में जो आप कर रहे हो वही चीज आपका वहां आ जाता है, क्योंकि हमारा हम इतने ऑटोमेटेड हो जाते हैं। व्हाट होता क्या है कि हम ऐसे हम खड़े हैं शूटिंग लेने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये एक इतना ऑटोमेटेड होता है कि आप खुद ही, फिर हम स्पेसिफिक स्किल पे काम करते हैं कि हाँ यार ये ट्रिगर ऐसे करना पड़ेगा, वो थोड़ा वो उसमें एम में काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्टांस देखना पड़ेगा, वो हाँ बैलेंस भी है, फिर हम उस चीज में जाते हैं। बट वो चीज क्योंकि इतनी ऑटोमेटेड हो जाती है, आप वो चीज बार बार करते हो तो उसकी आदत हो जाती है। इवन इफ यू क्लोज योर आइज, यू कैन स्टैंड, जैसे आप खड़े हो तो आप आंखें बंद करके भी खड़े हो जाओगे, आप करते रहोगे, बिकॉज यू आर सो परफेक्ट इन इट। बट उस चीज में फिर हम और हमें घुसना पड़ेगा कि ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैं कर ही रही हूँ, अब और क्या प्लान करूँ, उसको कैसे इंप्रूव करूँ। कैन ऐड जर्नलिंग इनटू इट। जर्नलिंग में आप काफी गाइडलाइंस होती हैं कि आप कैसे उसको कर सकते हो, हर एक स्किल को कैसे फोकस कर सकते हो, हर एक शॉट को कैसे फोकस कर सकते हो, हर एक राउंड के लिए क्या प्लान है आपका, वो चीज आपको वहां इंप्लीमेंट करनी है। नेवर इंप्लीमेंट न्यू थिंग्स इन कॉम्पिटिशन। न्यू थिंग इम्प्लीमेंट करोगे प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि उस चीज से आप हैबिचुएटेड ही नहीं हो। प्रैक्टिस में ही आप हैबिचुएट होते हो, प्रैक्टिस में ही आपको वो चीज हैबिचुएट होती है कि हाँ यार ये मैं करती आ रही हूँ, मुझे पता है ये कर सकती हूँ। अगेन योर सेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर एरियाज टू इम्प्रूव। इसके लिए आप प्लान बनाओगे, यू कैन इजिली एग्जीक्यूट इट ऑन कॉम्पिटिशन। आपको स्ट्रेंथ पता रहेगी, यू कैन इजिली वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ इन योर कॉम्पिटिशन। कि चलो यार ये तो इम्प्रूव नहीं कर पाई, लेकिन अगर मेरे पास 5 एरियाज टू इम्प्रूव हैं, 2 मेरी स्ट्रेंथ भी तो है, प्ले ऑन दैट स्ट्रेंथ। यू विल हैव कॉन्फिडेंस, यू कैन इजिली हैंडल प्रेशर, यू कैन इजिली परफॉर्म वेल। बट जब व्हेन यू कम बैक फ्रॉम अ कॉम्पिटिशन, ऑलवेज गिव अ परफॉर्मेंस फीडबैक टू योरसेल्फ कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस, क्या है, कैसा है, ओके दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दिस इज व्हाट आई विल डू इन द प्रैक्टिस सेशन। अकॉर्डिंगली प्लान। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, ये थर्ड वीक कैसा रहेगा, क्या इंप्रूव हुआ है, आर यू मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस, इफ नॉट कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, व्हाट आर द गोल्स, गोल्स ये हैं तो कैसे उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ। इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा तो नहीं होता है कि प्रैक्टिस में आपका कॉम्पिटिटिव राउंड होते होंगे, कभी कभार आपका एक मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस भी होते होंगे, ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन दैट, क्योंकि उस प्रैक्टिस मैच में आपको प्रेशर नहीं रहेगा। द मोर यू इम्प्लीमेंट इन दैट थिंग, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। व्हेन यू नो यस दिस इज आई हैव डन इट, ये मेरा प्लान काम कर गया है, नाउ हैव ट्रस्ट ऑन दैट प्लान। कंपटीशन के दिन वी हैव टू मॉडिफाई ओनली द बेसिक थिंग्स, नॉट द होल थिंग। आप अगर एक माइंडसेट से गए हो, आपने पहले ही वो कह दिया कि यार ये तो वो है, मुझे वो करना पड़ेगा, दैट्स इट, यू आर ऑलरेडी लॉस्ट है। हम ऑलरेडी खो जाते हैं अपने प्लान के बीच में। यस वी शुड हैव प्लान ए, वी शुड हैव प्लान बी, बट कितने कॉन्फिडेंट हो आप उन दोनों में?
If you're not confident on plan A, how much confident are you on plan B? Have you executed in the practice session? क्या आपने कितना टाइम दिया उसको, कितना आपने फोकस किया है उसको? That thing we need to monitor. तो प्लान सिर्फ कंपटीशन के डे नहीं बनता. It's your practice, it's your everyday work. It's your morning, evening, your home. It starts from there. कि हाँ यार ये तो मेरा इम्प्रूव नहीं हुआ है, ये करूँगा कल, ये कैसे करेंगे. Coach is there to guide you. वो कभी मना नहीं करेंगे. But you know you have the right way to go with it. Accordingly plan, accordingly goal set करो. You will have an idea. Goals हमेशा हाई नहीं करने हैं. ये भी गोल होता है, ये भी गोल होता है. तो हमारे जो ECG में रिपोर्ट आती है ना, वो ऐसे आती है, ऐसे नहीं आती हो कि हम सीधे जा रहे हैं और चढ़ गए पहाड़. गिरोगे भी, खड़े भी होना है. एंड इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू फॉल डाउन, इफ यू आर एबल टू कम बैक और नॉट. प्रैक्टिस में डू दैट थिंग. प्रैक्टिस में आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, यस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू. यू विल बी एबल टू डील विद इट वेरी एफिशिएंटली, ट्रस्ट मी. ठीक है. सेकंड थिंग अगेन, एजुकेट द माइंड. हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने प्रीवियसली बोला, स्ट्रेंथ पे फोकस करनी नहीं है. स्ट्रेंथ तो पता ही है ना मुझे, मतलब इससे मुझे अच्छा आता ही है, इससे क्यों प्रैक्टिस करनी है. वो चीज कर लेते हैं जो मुझे इंप्रूव करनी है, और वो चीज इंप्रूव हो नहीं रही. अरे यार क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, चलो कोई नहीं, दूसरा गोल सेट कर लेते हैं. वो चीज रह गई. अब वो चीज अब कॉम्पिटिशन के दिन आती है, वी गेट टेंस्ड, वी गेट एंग्शियस, वी गेट हाईली अराउज किया, क्या होगा क्या होगा, ये चीज मुझे करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी. फिर जब वापस आते हैं, परफॉर्मेंस फीडबैक नहीं दिया. परफॉर्मेंस फीडबैक क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये ठीक है, हो जाएगा, आई वॉज नॉट इन द मूड, या मे बी आई वॉज नॉट इन द जोन. बट अगेन, when you educate yourself, when you understand the situation, you understand your skill, again the very important point is self awareness. Are you aware of what is happening in the practice? Are you aware what you did today? Are you aware what you did, what are you going to do tomorrow? क्या प्रोग्रेस हुआ? Every practice thing matters. Yes, it's an add-on work, but it's for you. It's for every athlete. हमारा रोल ये होता है कि आप मॉनिटर करें, हम रोल हमारा मॉनिटर करना होता है. बट आवर रोल इज ऑल्सो टू मेक यू इंडिपेंडेंट. कि कल अगर मान लो मैं नहीं हूँ, या आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, यू आर अगेन, यू आर ऑटोनॉमस. आपको ज्यादा वो हो जाएगा कि यस आई हैव द ऑटोनॉमी टू डू इट माई सेल्फ. सर ने बताया कि एक चीज को ऐसे डील करना है, तो आई नो हाउ टू डील विद द 10 नेक्स्ट थिंग्स, एंड दैट्स अ बिग विन. देन योर सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीजेस. स्ट्रेंथ, वीकनेस, एरियाज टू इम्प्रूव, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है. एंड द मोर रिलैक्स्ड यू आर, द मोर बेटर इट इज. रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं काफी, yes, but you cannot use it on the day of competition until unless you use it in your practice sessions. प्रैक्टिस सेशन में नहीं करोगे. जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है सीढ़ी चढ़ने का. चलो साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते हम 10 बार गिरते हैं. यार यहाँ नहीं चलाऊंगा, यार लोग देख लेंगे, अकेले चलाते हैं. क्योंकि आपको पता है कि वहां गिर गए तो लोग देखेंगे, लोग हंसेंगे. सेम थिंग हैपेंस इन कॉम्पिटिशन. यहाँ पे अगर अच्छा नहीं किया तो यार लोग क्या बोलेंगे, ये तो अच्छी है, अब क्या हो गया, कोच क्या बोलेगा. तो हम अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि अकेले में गिर भी गए तो कोई देखेगा नहीं. अगर मान लो पापा ही होंगे, बस वही साइकिल चला रहे हैं, वो बता देंगे, उठा देंगे, हम चलते रहेंगे. वही सेम चीज हमें करनी होती है. प्रैक्टिस में अगर हम गिरे भी है तो हमें पता है कि हम क्यों गिरे. अगर आप प्रैक्टिस में बार बार आप वो चीज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट इम्प्रूविंग, यू आर नॉट अवेयर कि क्या हो रहा है. यू शुड बी अवेयर कि अच्छा ये शॉट क्यों नहीं जा रहा है. यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि क्यों नहीं हो रहा है. अवेयरनेस आपको होनी चाहिए उस चीज की कि ये शॉट क्यों नहीं लग रहा है. तो धीरे धीरे जब आप गिरते रहोगे, एक दिन वो साइकिल चलती रहेगी. अभी जब हम दो साल के, या मान लो 4 साल के बच्चे होते हैं, या 5 साल के बच्चे होते हैं, हमसे साइकिल नहीं चलती. बट जब हम हो जाते हैं 25-26 साल के, तो हमसे ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं चला सकते, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो कुछ भी हो. सेम थिंग एथलीट भी ऐसा ही होता है. वी टॉक अबाउट एथलीट, प्रैक्टिस पे ही आप अपने आप को चला सकते हो. एंड द मोर रिलैक्स यू आर, मोर काम यू आर, आपका फोकस उतना ही अच्छा रेगुलेट होगा. तो सर ने तो टेक्निक बता रखी है, चलो ठीक है, मुझे तो आती है कि ये इतनी सांस अंदर लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है, हो गया, अभी तो कर ही लेंगे. अब प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं. चलो चलो प्रैक्टिस में मजा आ रहा है, मैं रिलैक्स हो रहा है. अब कॉम्पिटिशन के दिन बॉडी टाइट हो गई, कॉम्पिटिशन के दिन हम ऐसे खड़े हो गए, क्या करें, वो टेक्निक क्या थी. उस समय कुछ याद नहीं आएगा. उस समय बस ये याद आएगा, प्रेशर, कोच का चेहरा,
क्राउड और आपका स्कोर। अब वो चीज का क्या हुआ जो सर ने बताया था करो, वो तो भूल गए सर। क्यों नहीं करी सर? प्रैक्टिस में करी ही नहीं, याद ही नहीं रहा। तो वो चीज आपको हैबिचुएट करनी पड़ेगी कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स यस बहुत जरूरी है, बट एग्जीक्यूट तो आपको ही करना है। एग्जीक्यूट तो हम एथलीट्स को ही करना है। अब वहां पे तो सर आएंगे नहीं कि सर ने पकड़ा टिकट आ गया ओलंपिक्स में खड़े हो गए चलो भी करो। वहां पे उल्टा कोच बोलेगा भैया तू क्या कर रहा है, तू जा यहाँ से। तो उसमें क्या होता है, आपको पहले से ही आपको हैबिचुएट करना है। आपको पहले से ही बोलना है आपको कि यस दिस इज व्हाट आई एम। आपको रूटीन का एक पार्ट बनाना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्री परफॉर्मेंस रूटीन होता है, फिर आपका जैसा मैंने बताया रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, एक्टिवेशन टेक्निक्स होती हैं। वो चीज आपको इनकलकेट करनी है, अपने ही एक प्रैक्टिस प्रोग्राम में इनकलकेट करनी है, तो ही हम कंपटीशन के लिए रेडी रहेंगे। साइकोलॉजिकल रेडीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो? नहीं, देन व्हाट अवेयरनेस यू आर हैविंग अबाउट योरसेल्फ कि मैं क्या करूं। साइकोलॉजिकल रेडीनेस टेंस यू टू बी हेल्प्स यू टू बिकम रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। तो वो चीज भी है। ठीक है, तो कभी अपना मेंटली अपने आप को लिमिट मत करो कि यार ये तो ठीक है ना, ये तो मैं हुई एथलीट हूँ, आई एम मेंटली स्ट्रांग हो गया, पर कंपटीशन में सर मुझे ऐसा क्यों होता है? गॉट द आंसर। प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। गलती करो, बहुत गलती करो। गलती करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, गलती करने से आप लूजर नहीं बन जाओगे। गलती करने से हम ये सीखेंगे कि क्या कमी रह गई है, उसमें इंप्रूव करेंगे। और गलती नहीं करोगे तो फिर तो नंबर वन है। प्रैक्टिस में हम नंबर वन है, पर कंपटीशन में आई नहीं है हम कहीं। प्रैक्टिस में नंबर वन बनने से अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वहां आप अगर नंबर 10 बन रहे हो ना प्रैक्टिस में, दैट इज मोर बेटर, बिकॉज आप 9 लोगों से ज्यादा गलती कर रहे हो, 9 लोगों से ज्यादा सीख रहे हो। कंपटीशन में वही 9 लोग आपको बोलेंगे यार ये तो बंदा प्रैक्टिस में कर नहीं पाता, यहाँ तो इसने धूम मचा दी। तो वो सुनने के लिए मत करो, डू इट फॉर योर सेल्फ। हैव एन अवेयरनेस, यूज ऑल द टेक्निक दैट योर साइकोलॉजिस्ट इज टीचिंग यू, इम्प्लीमेंटेड। जरूरी नहीं है कि सर ही बनाए, सर के अलावा भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। एवरी साइकोलॉजिस्ट हैव देयर ओन अप्रोच, एवरी साइकोलॉजिस्ट हैव वन मोटिव कि आप अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, मेक इट पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड यू विल सी वंडर्स, ट्रस्ट मी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज विजुअलाइजेशन। सर हाँ इमेजिन कर लिया मैंने, हाँ देख लिया मैंने, हो गया। हम 2 सेकंड में इमेजिन कर लेते हैं, हम 4 सेकंड में इमेजिन कर लेते हैं कि हमने देख लिया, हम कर रहे हैं, पर सर वो तो आ ही नहीं रहा है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। विजुअलाइजेशन डजंट ओनली मीन्स यू हैव टू जस्ट इमेजिन। आपने देखा, पहली बात तो क्या आपने क्लियरली देखा, क्या आपने उसको अच्छे से देखा, क्या आपने उसको महसूस किया कि आप कर रहे हो वो चीज। इवन इफ यू आर सिटिंग डाउन, आर यू एबल टू विजुअलाइज कि यू आर जस्ट डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट? आर यू एबल टू फील द मोमेंट? आर यू एबल टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग? वो चीज बहुत जरूरी है। हाँ सर आपने बताया था ना, हो गया हो गया हो गया हो गया विजुअल, चलो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एवरीथिंग वी हैव टू प्रैक्टिस, नॉट ओनली दिस, एवरीथिंग इज टू प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। फिजिकल प्रिपेयर आपका हर हर एंगल से हो रहे हो। मेंटल प्रिपरेशन इज वेरी भी बोलते हैं कि ओके टू फेल इन कंपटीशन, यस, बट वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती है, क्योंकि सर कंपटीशन निकल गया, अब नेक्स्ट कंपटीशन में सीनियर में हो जाऊंगा मैं, फिर तो और कंपटीशन हो जाएगा, अभी मुझे करना है अच्छा। देन स्टार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में यू कैन लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, नेवर बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेस and which I think you guys will be aware of. If not, let's look into it। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आपका फोकस ऑन द शूटिंग प्रोसेस। तो सिंस मैंने आप बहुत बहुत बोला मैंने कि गोल्स गोल सेट करो, गोल्स ये करो, गोल्स वो करो। अब गोल्स के भी काफी टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिर आपका प्रोसेस, परफॉर्मेंस, आउटकम। आउटकम होता है कि भैया मुझे तो शॉर्ट चाहिए, इतने शॉर्ट चाहिए, बाहर खत्म, वो मेरा गोल है।
परफॉर्मेंस का होता है कि यार लास्ट परफॉर्मेंस में ऐसा हुआ था, इस परफॉर्मेंस में ऐसा करना है, आफ्टर टेकिंग अ गुड परफॉर्मेंस फीडबैक। प्रोसेस होता है कि वी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी प्रोसेस, कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5, ब्ला 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 ब्ला, वैसे हमें फॉलो करना है। लास्ट में तो हो गई, जब हम सीढ़ी चढ़ेंगे, गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, चोट लगी, फिर चढ़ेंगे, पर सीढ़ी चढ़ना एक प्रोसेस है। तो अगर हम शूटिंग प्रोसेस से फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2 बोलेंगे, विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्या करना है, क्या कमी आ रही है। अगेन मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट यहाँ बहुत आ जाता है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन ईच स्टेप, you will know your weakness, you will know your areas to improve, sorry, not weakness, you will know your most of the international based psychologists, Indian psychologists, they all use this. ठीक है, so this is box breathing technique, basically ये एक rhythmic टेक्निक बोलते हैं, बट बॉक्स ब्रीदिंग इजी हो जाता है एक एथलीट को याद करने के लिए। अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, वी आर नॉट द एक्सपर्ट, वी हैव टू मेक एथलीट एक्सपर्ट, कि भाई वो समझे हम क्या कह रहे हैं। मैंने बोल दिया रिदमिक करते रहो, वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, रिदमिक मुझे गाना कौन सा लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सर मैंने गाना चला दिया था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। हम अपनी टर्मिनोलॉजीज में घूमते रहते हैं कि नहीं, आई एम अ गुड साइकोलॉजिस्ट, यूज दिस, यूज दैट, वो ये हमने अपना बढ़ावा कर दिया। व्हाट अबाउट एथलीट, हाउ कैन ही अंडरस्टैंड, हाउ कैन ही कॉम्प्लीमेंट? तो we have to go with the wordings, we have to go at his level to make him understand कि भैया तू समझ आया नहीं आया। तब तभी तो हमारा गोल सक्सेसफुल हुआ ना। हमने तो ज्ञान झाड़ दिया, चलो भाई जाओ, वो बंदा घर जाता है, यार सर ने बोला था बहुत कुछ था, बोला क्या है? तो इसलिए पूछना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी जैसे मैं काफी कुछ बोल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि सब चीज समझ आ रही है। आस्क, पूछो पूछो, सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, ये बताओ कैसे होगा। इट्स ओके टू चैलेंज एनीवन, इट्स ओके टू आस्क। जब तक हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम बस सुनते रहेंगे, कल भूल जाएंगे। बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच एक्सपीरियंस। तो बॉक्स ब्रीथिंग टेक्निक से क्या होता है, ये माइंड मसल टू माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक। तो एज यू कैन सी एक फोटो है नीचे, ठीक है, तो बॉक्स है, ठीक है, तो 4 4 4 4। तो स्टेप वाइज हम कैसे फॉलो करते हैं इसको। स्टेप 1 में होता है वी हैव टू ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज, ठीक है, 4 सेकंड ब्रीथ इन करना होता है, 4 सेकंड होल्ड करना होता है, एंड देन वी हैव टू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ विद ओ शेप फॉर 4 सेकंड। पर काउंट वेरी कर जाता है। काउंट वेरी कैसे कर जाता है, 1 2 3 4, ये इनहेल करते हो आप, जब होल्ड करते हो तो 1 2 3 4। जब एक्सहेल करते हैं तो इट शुड बी 1 2 3 4, and it starts with 4 seconds. You can increase it to 5 seconds, 6 seconds, depending on कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ यार, 4 सेकंड से कुछ तो हो नहीं रहा है, मैं 8 सेकंड चल लेता हूँ। 8 सेकंड करा, रोज प्रैक्टिस करी नहीं, कंपटीशन में सर साथ अटक गया। तो उससे क्या होता है, जब हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें पता नहीं रहेगा। Again, if you want to do this technique whenever you are starting to practice, you can go for each shot also, before each shot, before a practice session, after practice session, when you are feeling nervous, when you are feeling anxious, और जब आपको टेंशन हो रही है, आप ये यूज कर सकते हो। एंड दिस इज रेलिवेंट फॉर ईच एंड एवरी स्पोर्ट। बट सिंस रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स रहोगे प्रिसीजन स्पोर्ट्स में या शूटिंग स्पोर्ट में, उतना आपका फोकस रेगुलेट रहेगा, क्योंकि कनेक्शन है। आपकी ब्रीदिंग रेट आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आपके बॉडी में थोड़ा हाई टेंशन हो रहा है, ठीक है। सो उसके लिए एक और काफी टेक्निक्स होती हैं। बस एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्विक बॉडी स्कैन। क्विक बॉडी स्कैन भी एक टेक्निक होती है, वेरी मेंटली स्कैन योर बॉडी, कि कहाँ का टाइटनेस है, कहाँ का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब तक हम अवेयर नहीं होंगे अपने बॉडी सेंसेशन के बारे में, हम अवेयर नहीं होंगे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आप ऐसे ही खड़े रहोगे, नहीं यार सब सब छोड़ो, बस मारो। उससे क्या रहेगा, 50% तो वही हो गया। मेंटल ट्रेनिंग से क्या होता है, एन एथलीट इज हियर, मान लो कि आप ये हो, ये आप हो, ये आपका ओपोनेंट है। अगर इसके पास मेंटल ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास है, तो आप ऑलरेडी यहाँ आ गए।
आपके पास ऑलरेडी एक एज मिल गया है, मेक यूज ऑफ दैट एज सो दैट आपको परफॉर्मेंस एज मिले, सो दैट आपको पता रहे कि हाँ आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. You can use this technique to shift your attention, regulate your focus, नैरो करने के लिए अपना अटेंशनल, हैव अ गुड बॉडी रिस्पॉन्स. ठीक है, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो. नॉट ओनली एथलीट्स, अदर पार्टिसिपेंट कैन आल्सो यूज दिस. Yes, and again continuation of the last slide, learning to stay focused. ठीक है, again 3 very important things. So those 2 things I think जो मेरे colleagues हैं and I think most of the athletes are aware of. So ratio breathing जो है basically again is a muscle to mind relaxation technique. ये लास्ट ही टेक्निक का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन बोल सकते हो, और लास्ट टेक्निक का एक और पार्ट बोल सकते हो. क्योंकि होता क्या है कि वी गिव एथलीट्स एवरीथिंग. अब ये तो नहीं है कि 40 की 40 स्किल दे दी या 50 की 50 स्किल दे दी और एथलीट वैसे बैठ गया यार मैं ट्रेनिंग करूँ ये करूँ. तो हमें उनको वो चीज देनी होती है. अगर उसको लग रहा है बॉक्स ब्रीथिंग काम नहीं आ रहा है, यू कैन गो विद रेशियो ब्रीथिंग. रेशियो ब्रीथिंग काम नहीं आ रहा है, यू कैन गो विद फ्लशिंग आउट. फ्लशिंग आउट काम नहीं आ रहा है, यू कैन गो विद डिस्ट्रैक्शन थ्रू फटीग. काफी कुछ है, लॉट मेनी टेक्निक्स. बट रेशियो ब्रीथिंग क्या होता है, इसमें बस एक चीज ये आता है कि पहले वाले में 4 4 4 था, 4 इनहेल 4 होल्ड 4 एक्सहेल. इसमें क्या होता है, अगर आप 1 सेकंड ले रहे हो तो 1 सेकंड होल्ड करने के बाद 2 सेकंड इन्हें एक्सहेल कर रहे हो, मतलब डबल आप एक्सहेल कर रहे हो. अगर आप इनहेल 2 सेकंड कर रहे हो, आपको होल्ड 2 सेकंड करना पड़ेगा और आपको एक्सहेल 4 सेकंड करना पड़ेगा, क्योंकि 1:2 रेशियो है. अगर 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा, और 4 है तो 8 हो जाएगा. एंड 4 वाला डिफिकल्ट होता है बिकॉज जब आप उसको यूज टू हो जाओगे तो आपको 4:8 इजी लगेगा, फिर आपको वो ज्यादा समझ आएगा. 1:2 you can start with 2:4 also, you can start with 3:6, again depending on individual to individual. Self talk जो मैंने previously mention किया था कि self talk, your positive affirmations, the statements that you are using, that depicts yourself, and जो भी आप अपने को यूज ज्यादा करते हो वो चीज. ठीक है, तो सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है. ठीक है, तो सेल्फ टॉक आपका मोटिवेशनल भी होता है, इंस्ट्रक्शनल भी होता है. प्लीज रिपीट. ओके, गुड टू सी, इंटरेस्ट काफी लोग सुन रहे हैं, सो हैप्पी. ठीक है, सो रेशियो ब्रीथिंग में अगेन जो लास्ट था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से. आई एम सॉरी गाइज, एक मिनट, ये नहीं रहा है. जैसे ये लास्ट वाला था ना आपका, ये बॉक्स ब्रीदिंग में आप देख पा रहे होंगे कि जो ये है, ये मान लो आपने ये 4 सेकंड इनहेल किया, फिर 4 सेकंड होल्ड किया और 4 सेकंड आपने एक्सहेल किया, तो ये एक साइकिल बन जाती है. जैसे इनहेल होल्ड एक्सहेल, इनहेल होल्ड एक्सहेल, इनहेल होल्ड, ऐसे करके एक साइकिल बन जाती है, तो उसको हम बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं. तो सेम चीज रेशियो ब्रीदिंग में रहेगा. रेशियो ब्रीदिंग में क्या आ जाएगा आपका, बस 1:2 हो जाएगा. जैसे आप बॉक्स ब्रीदिंग में 4 4 4 कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा. आपने अगर 2 सेकंड इनहेल किया है तो 2 सेकंड होल्ड करके आपको 4 सेकंड डबल आपको एक्सहेल करना है, बस ये डिफरेंस है, बाकी वो सेम ही है. बॉक्स ब्रीदिंग में आपका इक्वल अमाउंट ऑफ काउंट्स रहेंगे, इनहेल में भी, एक्सहेल में भी और होल्ड में भी. पर रेशियो में क्या होगा, होल्ड और इनहेल का काउंट सेम रहेगा, बट जब एक्सहेल करते हो तो उसका काउंट डबल हो जाएगा. तो इट विल बी, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ इफ आई एम विजिबल. तो होपफुली अभी कनेक्शन नहीं आया है, तो मैं 2:4 करूंगा. ठीक है, तो ऐसे तो मैंने डबल एक्सहेल किया. ठीक है, हाँ, आई विल गेट बैक टू यू मन्नत, आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, तो फिर आपका जो मैं अगेन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि सेल्फ टॉक. तो सेल्फ टॉक के काफी फंक्शंस होते हैं. ठीक है, मोटिवेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, आपको गाइड के लिए होता है, तो मतलब आपको पुश करने के लिए होता है. तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है.
अब आप पॉजिटिव यूज कर रहे हो तो हाउ यू आर इंस्ट्रक्टिंग योरसेल्फ, चलिए यार चलते रहो, चलो बढ़ते रहो, लेट्स गो, लेट्स कीप मूविंग, ऐसे करके। ठीक है, मोटिवेशन में होता है कम ऑन, लेट्स गो फॉर इट, लगे रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर हम कुछ एथलीट्स होते हैं जो नेगेटिव सेल्फ टॉक भी यूज करते हैं, बट टू मोटिवेट देमसेल्फ, कि उससे नहीं होगा यार, उससे नहीं होगा यार, एंड सरप्राइजिंगली दे डू इट। तो अगेन सेल्फ टॉक यूज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एथलीट टू एथलीट। किसी के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी हो जाता है, बहुत हेल्पफुल हो जाता है। नाउ किसी के लिए नेगेटिव भी जरूरी हो जाता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो जाता है, बट वी डोंट प्रमोट नेगेटिव सेल्फ टॉक, बट फॉर फ्यू एथलीट्स नेगेटिव सेल्फ टॉक डू हेल्प। जैसे मेरे पास एक एथलीट था, वो रेस से पहले एक चीज बोलता था बस, होगा ही नहीं, जो भी हो जाए होगा नहीं। एंड वेन एवर ही यूज टू डू दैट, उस बंदे का गोल्ड या तो सिल्वर या ब्रॉन्ज आता था। वो अभी भी एक टूर्नामेंट जीत के आया है, बट नेगेटिव सेल्फ टॉक ही इज बीन यूजिंग जस्ट बिफोर द रेस, ही विल डू दैट। एक दिन पहले वो बोलेगा हाँ मैं रेडी हूँ, मैं हो जाएगा, बट रेस होने से पहले वो सिर्फ ये बोलता है कि नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा। एंड दैट आई डोंट नो, दैट बूस्ट हिम, तो मोटिवेट फील होता है, क्या होता है, बट दैट वर्क फॉर हिम। तो जरूरी नहीं है कि अगर उसके लिए कर रहा है तो आपके लिए भी करे, वो आपको फाइंड आउट करना है कि सेल्फ टॉक मेरे लिए पॉजिटिव है, इंस्ट्रक्शन में कौन सा यूज करूँ। तो हम मोटिवेशनल कार्ड्स भी लेते हैं, तो आई ऑल्सो अरेंज मोटिवेशनल कार्ड्स फॉर एथलीट्स कि स्टे ऑन। मान लो कि एक एथलीट थी, ही वांटेड मोटिवेशनल कार्ड ऑफ आईपीएस की ओलंपिक्स, तो वो क्या करते हैं, वो कार्ड बना देते हैं एंड वी मेक अ कीरिंग आउट ऑफ इट। वो कीरिंग उनके बैग में लगा देते हैं या बॉटल में लगा देते हैं, तब भी वो उनको फेस, जब भी वो मतलब बैग उठाएं तो वो कीरिंग उनको दिखे, एंड दैट्स देयर सेल्फ टॉक वर्ड। तो उनको लगता है कि हाँ यार ये ओलंपिक्स, एंड दे आर बूस्टेड, लेट्स गो। तो वो चीज भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस ऑल्सो, कि मोटिवेशनल कार्ड्स यूज करना, और ऑन फील्ड के लिए ज्यादा मूड कार्ड्स यूज करना, फिर एंग्जाइटी कार्ड यूज करना। क्योंकि अगर हम पूछने बैठ गए भैया तुम्हें कैसा फील हो रहा है, सर बहुत बढ़िया, क्योंकि एथलीट से आप बात नहीं कर सकते बिफोर अ कंपटीशन, यू हैव टू बी क्विक, वी हैव टू बी क्विक एज साइकोलॉजिस्ट। अगर हम टीम ट्रेवल कर रहे हैं, वी हैव टू बी क्विक इन नोइंग एंड इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इज ही फीलिंग, क्योंकि सब ऐसे बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा। तो उस समय वी हैव टू बी ऑब्जर्वेंट एंड वी हैव टू बी इनोवेटिव इनफ टू गेट द इंफॉर्मेशन। Last point again, this Startup, I think most of us follows it. Meditation, deep breathing, visualization. Me personally, meditation and deep breathing, I don't go much with it, but I have to if there is no other alternative. तो meditation, deep breathing मेरा last resort रहता है मेरे personal practice में, which has given me good results. तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड स्टार्टअप यस फॉर आर्चर्स, बिकॉज आर्चरी एक अकेडमी है यहाँ पे, तो उसके लिए भी हम जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे काफी एथलीट्स आते हैं। सो एक एथलीट था, सो वाई टाटक हमने यहाँ पे ऐड किया है बिकॉज वो हेल्प किया है उस एथलीट को। सो ही वॉज एन इंटरनेशनल एथलीट, एंड उससे पहले व्हेन ही केम, ही उसका फोकस बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड था, उसको पता ही नहीं, कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही कम था। बट जब हमने इसको ये बताया कि यू कैन स्टार्ट विद टाटक, तो वो मेडिटेशन करता था, यूज्ड टू डू डीप ब्रीथिंग, यूज्ड टू डू टाटक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो इसमें मेरा उसमें एडिशन ये था कि टाटक में क्या होता है कि कैंडल है, आप उसको देख रहे हो, फ्लेम कलर्स देख रहे हो, टाइप्स ऑफ फ्लेम देख रहे हो, वो सब हम देखते हैं उसमें। और उसमें मेरा एडिशन ये था कि जो मैंने एग्जीक्यूट किया, देयर इज नो एविडेंस ऑफ दिस, रिसर्च एविडेंस नहीं था, बट मैंने उसको एग्जीक्यूट किया था एंड दैट वर्कड अ लॉट। और सिर्फ उसके साथ ही नहीं, विद अदर एथलीट्स आल्सो दिस इज वर्किंग वेरी फाइन। बट उनको ये प्रिकॉशन ये बोलते हो कि यू हैव टू स्टार्ट विद लेवल 1 एंड लेवल 2, देन यू हैव टू गो विद दिस। क्योंकि एक एथलीट ने ये भी कंप्लेन किया था कि सर थोड़ा इल्यूजन सभी आ रहा है थोड़ा, मैं कहा तो देन यू कैन गो फॉर 2 टाइम्स अ वीक, देन यू कैन स्टार्ट विद लेवल 1, लेवल 2, देन अगेन यू कैन गो फॉर लेवल 3। सो उसमें क्या था कि व्हेन यू क्लोज द लाइट, तो एक कैंडल ऐसे लाइट हो रही है, तो उसके अराउंड एक ऐसे ऑरा बन जाता है कि जैसे ये फ्लेम जल रही है, ऐसे ये बन गया है, एक पूरा ऑरा बन गया है। अब उसका ऑरा यहाँ तक ही है। अब ऑरा जो है और फ्लेम जो है, उसके बीच में क्या होता है, एक पतली सी बहुत बबल्स टाइप का एक लेयर बनता है, बहुत पतला पतला, एंड दैट इज नॉट विजिबल जब तक आप उसको फोकस नहीं करो।
तो जब उसको आप फोकस करोगे आपको दिख भी जाएगा ना, आपने अगर ऐसे अपनी आंख को आपने से ब्लिंक भी किया, इट विल गो अवे विद इन सेकेंड्स, वो दिखता ही नहीं है। तो वो चीज मैंने उस पर ट्राई किया, एंड यू वोंट बिलीव, ही वेंट टू द कंपटीशन, ही केम विद अ सिल्वर मेडल। और उस कंपटीशन में वो बंदा राजस्थान से कोई लाया नहीं था उसमें मेडल, एंड ही गॉट इट। सो दैट वाज अ गुड अचीवमेंट फॉर अस। बट हमसे ज्यादा वो खुश हुआ क्योंकि वो उस पे उसकी सिर्फ यही नहीं, गेम पे ही नहीं, और लाइफ में भी काफी इफेक्ट किया। तो अगेन विच वी फोकस ऑन इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। गेम पे तो फोकस आएगा ही आएगा, गेम पे तो हेल्प होगा ही होगा, बट अगेन होलिस्टिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। तो अगेन विजुअलाइजेशन आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो किया हुआ है कि वी हैव टू विजुअलाइज, वी हैव, क्योंकि काफी फंक्शन होते हैं, इमेजरी के काफी फंक्शन होते हैं, तो हम हर एक फंक्शन को समझाते हैं कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप वाइज की कैसे क्यों करना है, क्या जरूरी है, वो फोकस में हेल्प करता है। एंड मूविंग अहेड, सो आई थिंक कमिंग टू सेकंड लास्ट पार्ट, कि प्रेशर दोस्त है या हमारा या बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, अब होता क्या है कि प्रेशर से हम डील नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं कि यार ये चैलेंज आ गया है, वो चीज मुझे प्रेशर बिल्ड कर रही है, बस मैं गया, अब तो हम गए हो, हम ऐसे बोल देते हैं और सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। ठीक है, पर हम ये नहीं समझते कि प्रेशर जो हो है वो हमें पुश भी करता है। अगर प्रेशर नहीं रहेगा, वी कैन ऑल्सो गो इन अ वेरी रिलैक्स स्टेट। अब जैसे मैंने पहले बताया कि योर अराउजल लेवल्स, योर एंजाइटी लेवल्स, दैट शुड बी मेंटेन्ड। ऐसा नहीं है कि एक ही स्पेसिफिक लेवल है। मे बी इफ यू आर टू रिलैक्स्ड, मे बी आपको शूटिंग गेम में भी प्रॉब्लम आए, रिलैक्स, ज्यादा रिलैक्स होने में भी आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आए। तो लिटिल अमाउंट ऑफ प्रेशर शुड बी देयर, लिटिल अमाउंट ऑफ टेंशन शुड बी देयर, सो दैट इट पुशेस यू। आपको बिल्कुल डाउन नहीं करे, बट इट शुड, आपको उस पर इतना मेंटेन करना है कि दैट वो चीज आपके पिक्चर से दूर नहीं होनी चाहिए। प्रेशर शुड बी देयर सो दैट देयर इज समबडी टू पुश यू। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, दिस इज आवर परसेप्शन, आवर बिलीव किया प्रेशर हो गया है, हमने ले लिया है, भारी भारी हो गया है, किसी से बात नहीं करनी है, बाथरूम भी जाना है, कंपटीशन भी आ रहा है, पैर भी ब्लॉक हो गए हैं, हो गया, बस मैच होने से पहले ही हार गए। तो प्रेशर हमारा क्या बन गया, दुश्मन, बेताल बन जाता है, वैसे करके चिपक जाता है। अब बेताल को कैसे हटाएं? अब बेताल तो आ गया, अब बेताल क्वेश्चन पूछेगा, क्यों भाई, तेरे साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया तेरे को, कोच ने क्या बताया तेरे को, हम स्ट्रेट डेड, भैया हो गया, गए, मेंटली हम तो डाउन हो गए, फिजिकली करेंगे 50%, पर हम मैच से पहले ही हार जाते हैं। जो प्रेशर है, जो हमारे बेताल भैया है प्रेशर, उसकी वजह से हम पहले ही हार जाते हैं। बट अगर हम उस चीज को फेस करें, उस चीज को हम समझे कि हाँ यार ये बंदा मुझे पुश करने आया है, चिपट तो गया है, कब तक चिपटा रहेगा? जब तक मैं उसको चिपटने दूंगा, जब तक मैं उसको समझूंगा नहीं कि प्रेशर क्यों आ रहा है, जब तक मुझे कुछ कर नहीं सकता वो। उसको अवॉइड नहीं करना है, प्रेशर को हमने अवॉइड कर दिया ना, वो आपके पीछे ही आएगा। तो जैसे घोस्ट स्टोरीज हम बात करते हैं, घोस्ट की बात करते हैं, वो आपके पीछे ही आएगा। हम उसको फेस करते हैं, वो नहीं आता। ठीक है, सो वेरी इररिलेवेंट एग्जांपल, बट होता क्या है कि बेताल अगर चिपक जाता है तो उसको हटाने के लिए आपको ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारी एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, बीच वाली फोटो में आपका अगर ब्रेथ रुक जाती है, आपको लग रहा है कि मेरी सांस नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ट्राई करते हैं, बट एट वन पॉइंट वो सांस आ जाती है। बट क्या होता है, प्रेशर उस समय फील होता है, बट व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, देयर इज नो प्रेशर। अगर आप उस चीज से फाइट नहीं करोगे, उस चीज को आप नहीं समझोगे करेक्टली, आप उसको अप्रोच नहीं करोगे, दैट विल ईट यू अप, वो आपको अंदर से ही खा जाएगा। और प्रेशर अगर एक बार हिट कर गया, देयर इज नो कमिंग बैक। आप कितना भी स्किल सीख लो, अल्टीमेटली इट कम्स एट द एथलीट, एज अ पर्सन जो कि उसको फेस कर रहा है। अब मैं तो बोल दूंगा कि यार प्रेशर क्या डील कर रहे हो, क्राउड ही बोल देगा यार ये तो क्या प्रेशर डील कर रहा है, ये तो इंटरनेशनल एथलीट है फिर भी कर रहा है यार। पर वो ही समझेगा, वो बंदा जो डील कर रहा है या फेस कर रहा है, वो ही समझ सकता है उस चीज को, हम नहीं समझ पाएंगे। पर अगर हम वो समझ पा रहे हैं, तो
हमें उसको गाइड करना होता है कि देखो भाई, प्रेशर को डील करने के लिए यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि ये आपको कैसे पुश कर रहा है, क्यों पुश कर रहा है, और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हो, कौन सी स्किल्स आप यूज कर सकते हो, कब यूज कर सकते हो। अगेन कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में जो हमने आपको बताया करने के लिए, क्या आपने वो किया? प्रैक्टिस में प्रेशर तो होता ही नहीं है सर, मैंने किया ही नहीं, बस कंपटीशन में नहीं समझ आता वो कैसे यूज करना है। जैसे अभी मैंने आपको रेशियो ब्रीदिंग बताया, अब आधों ने नोट कर लिया होगा, आधों ने बोला होगा तो याद रहे, कल जाए करूंगा। अब कल नहीं किया, कल क्योंकि कोच सर ने एक नया रूटीन दे दिया, मुझे वो फॉलो करना है, वो मैं कर रहा हूँ, बट रेशियो ब्रीदिंग तो रह गया। अब जब कंपटीशन में जाएंगे तब सर की याद आएगी कि एक महीना पहले सर ने बताया था, हाँ मैं करता हूँ वो। अब वो तो पता ही नहीं कैसे करना है, कुछ भी कर लिया, प्रॉपरली नहीं हुआ, सिस्टमेटिकली नहीं हुआ, बस हम रह गए, प्रेशर से डील नहीं कर पाए। फिर हम बोलेंगे यार साइकोलॉजी से बेकार था, उसने बताया था कुछ हुआ ही नहीं, और ये सब था वो सब था, कुछ तो हुआ ही नहीं, टेक्निक का क्या फायदा। पर जब तक हम वो चीज प्रैक्टिस में नहीं करेंगे, हमें पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है। प्रैक्टिस में प्रेशर नहीं है तो क्या हुआ, वो स्टेज तो है ना आपके पास स्टेज है, आपके पास एरिना है, आपके पास पूरा वो प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है। तो एक बार वो आप यूज तो हो जाओगे, देन यू नो एग्जैक्टली व्हेन टू यूज इट। जब आप मैच प्रैक्टिस करते हो, यू नो एग्जैक्टली व्हेन टू यूज इट, क्योंकि हम ये भी बताते हैं कि आप प्रैक्टिस से पहले यूज करो, जब भी टेंशन आए नॉर्मल लाइफ में भी तब भी यूज करो, तो यू नो व्हेन टू यूज इट। अरे सर, अब मैं एग्जांपल दूं तो काफी एथलीट्स हैं जो सुनते ही नहीं कि नहीं यार, ये तो क्या है, ये तो काम बढ़ा दिया सर ने, अब लिखो रोज, और रोज ये करो, मॉनिटर करो, हमसे नहीं होता ये, हम तो एथलीट है। पर ये इसकी चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत रेलेवेंस है, तभी हम प्रेशर को अपना दोस्त बना पाएंगे। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो प्रेशर हमारा बेताल बन जाएगा और हमारे पास कोई आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, तो लर्न टू टेक प्रेशर, एंड इट्स गुड टू टेक प्रेशर समटाइम्स, बट वो करेक्ट अमाउंट, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, बट इन द करेक्ट अमाउंट इट इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। क्योंकि आप कैजुअल स्टेट में नहीं आओगे, आप ज्यादा प्रेशराइज नहीं होगे, तो वो भी बहुत जरूरी है कि आप करेक्ट अमाउंट में उसको डील करो, उसको फेस करो, एंड दैट्स इट, यू हैव योर गोल सेट एंड यू हैव योर गोल अकम्प्लिश। ठीक है, एंड जस्ट टू समराइज अगेन, जो हमने सब कुछ किया कि हाउ टू फेस अ कंपटीशन। ठीक है, तो मोटिवेशन अगेन मैं इस पर ज्यादा नहीं करूंगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड, प्लान जो हमने बनाया है वो चीज। ठीक है, फिर बर्नआउट पे हमने जाना है, ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, सर नहीं हो रहा है, गोल अचीव नहीं हो रहा है, गोल अचीव नहीं हो रहा है, मैं ओवर ट्रेनिंग करूंगा, वो भी नहीं करना है, वरना मेंटल फटीग हो जाता है। मेंटल फटीग से आपका फोकस डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, फिर थॉट्स विल स्टार्ट ईटिंग यू अगेन, फिर काफी उसके कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं। ठीक, फायरिंग पॉइंट पे क्या सोचना है, विच अगेन रिलेट्स टू द पॉइंट कंट्रोल ओवर योर कॉन्शियस थॉट्स, उस चीज पे कंट्रोल आना चाहिए। देन अगेन पीक एंड वैली पॉइंट्स, वही ईसीजी, ऊपर नीचे, वो भी जरूरी है कि बेस्ट परफॉर्मेंस तो हो गया, अब इम्प्रूवमेंट क्या करना है, इम्प्रूवमेंट तो हो गया, अब बेस्ट परफॉर्मेंस में क्या करना है, वो चीज भी हमें पता होना चाहिए, विच अगेन रिलेट्स टू योर सेल्फ अवेयरनेस पार्ट। कंट्रोलिंग प्रेशर, अगेन कंट्रोल कैसे होगा, जब हम उसको फेस करेंगे, तब समझेंगे कि क्या चीज हमें रोक रही है। पॉजिटिव थिंकिंग, अगेन थिंकिंग के पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, कि क्या चीज आपको पुश कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है, वो चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड कमिंग अगेन टू लास्ट, ये लास्ट पार्ट है हमारा मूड प्रोफाइलिंग। तो ये हमने आज एड ऑन किया है टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि सॉरी हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये हमें क्यों करना चाहिए। तो अब मूड क्या होता है कि एक, अब मूड हमें क्यों जरूरत है सर, मूड की क्या जरूरत है, मूड तो फ्लक्चुएट तो होता रहता है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी ये है, वो तो सिचुएशन पे चेंज होता है सर। अब मूड प्रोफाइलिंग क्यों करनी है, अगर मैं आज खुश हूँ तो कल मैं हो सकता है खुश नहीं हूँ। पर ये चीज जब हम बच्चे को समझाते हैं कि वो बहुत जरूरी हो जाता है, कि व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, उस पे परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो मूड और इमोशंस में बहुत माइन्यूट फर्क होता है। मूड इज, आज है, 1 घंटे में बदल जाएगा, 2 घंटे में बदल जाएगा, 5 मिनट में बदल जाएगा। इमोशन इज
लॉन्ग टर्म, कि आप उस इमोशनल स्टेट में हो 1 हफ्ते से, महीने से, 2 हफ्ते से। तो मूड वेरी करना और फ्लक्चुएशन इज कॉमन, बट हाउ इट इज अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस, क्योंकि कोई आइडियल मूड नहीं होता हर एक का, कि यार मेरा मूड अच्छा ही है तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, या मेरा मूड अगर अच्छा नहीं है तो ही मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। इट वेरीज। समटाइम्स हम गुस्से में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कोच ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैं दिखाऊंगा, मैं भी कर सकता हूँ, कर दिया, कोच इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, मूड चेंज हो गया। बट क्या आपको वो इंसाइट किया, क्या वो चीज आपको इन्फ्लिक्ट किया कि आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया? तो एथलीट्स वेरी करता है अपने ऑप्टिमल मूड्स में, अलग अलग सिचुएशंस में। तो मूड प्रोफाइलिंग से क्या होता है, हमें फायदा ये होता है कि हमें जो मूड स्टेट होते हैं, या 6 फैक्टर इन इट, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं लास्ट स्लाइड पे, कि जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको वो एसोसिएट करता है डायरेक्टली आपका जैसे एक कॉन्सेप्ट है आइज ऑफ है जो इंडिविजुअलाइज जोन ऑफ ऑप्टिमम फंक्शनिंग, कि वो टॉक्स अबाउट कि जो आपका इमोशनल एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है आपके परफॉर्मेंस में, वो अफेक्ट करता है आपके परफॉर्मेंस में, टाइम पे आपका इमोशनल कंटेंट पे, कॉन्टेक्स्ट पे, सिचुएशन पे नहीं है, सिर्फ एंजाइटी लेवल ही नहीं है, आपका इमोशनल एक्सपीरियंस भी है जो बहुत मैटर करता है। आपको मान लो गुस्सा आ रहा है, बहुत अग्रेसिव प्लेयर हो, कभी कभार वो आपको रेड कार्ड भी दिला देता है, कभी कभार वो आपको एक अच्छा बहुत अग्रेसिव खेलने से, टफ खेलने से आपको बेनिफिट भी मिलता है। तो वो यूरी हेनिन टॉक्स अबाउट कि कितना जरूरी है आपको ये मॉनिटर करना, आपको पता होना, अपना इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में पता होना। एंड मूड प्रोफाइल इसमें टाई लेन, वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने ही ये बोला था कि मूड प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है, कि हर एक सिचुएशन में मूड में आप कैसे परफॉर्म करते हो। तो ये मूड प्रोफाइलिंग से हम रिकमेंड कर सकते हैं कोचेस को भी और कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स को भी। जैसे मैंने बोला वो इंटर डोमेन काम करते हैं, तो उनके भी हम आइडिया दे सकते हैं, ये मूड में देखो ये है, इस मूड में देखो ये हो रहा है, ये इसका इमोशनल एक्सपीरियंस है, ये इसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। तो उसके हिसाब से फिर हम ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग प्रिवेंट कर सकते हैं, ओवर ट्रेनिंग हम चेंज कर सकते हैं। और बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है उसके जर्नल वेलबींग के बारे में भी, कि अच्छा आज तो बंदे का डिप्रेशन हाई है, कल लो है, व्हाट हैपेंड, हमने इंटरवेंशन से क्या रोल प्ले किया, ठीक है, हमने ये कैसे किया, क्या इंटरवेंशन दी कि उसका डिप्रेशन कम हो गया, उसका विगर हाई हो गया। तो ये मूड प्रोफाइलिंग से वी गेट एन आइडिया कि हम कैसे मूड मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसका, और कैसे मूड में ही इज परफॉर्मिंग वेल, कौन से मूड में ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। वो चीज का डिटरमाइन करना, वो चीज को मॉनिटर करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम, फॉर द एथलीट। तो इसलिए हमें ये यूज करना पड़ता है मूड प्रोफाइलिंग। मैं भी अपनी प्रैक्टिस में यूज कर रहा हूँ, आई यूज मूड प्रोफाइलिंग। एंड जो मैं मूड कार्ड्स की बात कर रहा था, इट्स बेसिकली अ कार्ड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि 24 वर्ड है, 24 कार्ड्स हैं, इट्स इजियर टू गिव देम एंड दे पिक। तो ना कि वो रोज भरे, वो कार्ड होता है कि फिर वो बताओ कितना ज्यादा आप क्या महसूस कर रहे हो अभी, तो वो कार्ड पिक करते हैं। अच्छा ये कार्ड है, अच्छा विग, अच्छा एक्टिव फील नहीं कर रहा है, अच्छा कंफ्यूजन भी है, अच्छा टायर्ड भी है। तो हमें समझ आता है कि फटीग ज्यादा हाई है, फटीग हाई है तो क्यों है, टेंशन हाई है तो डिप्रेशन क्यों हाई है, विगर हाई है लेकिन फिर भी डिप्रेस है, मतलब बंदा मेहनत कर रहा है फिर भी कुछ परेशानी है इसको जो रोक रही। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल डिस्कस कर देंगे। तो मूड प्रोफाइलिंग की बात आ गई, ठीक है, जरूरी है, मूड को मॉनिटर करना जरूरी है, उसको प्रोफाइल करना जरूरी है कि क्या है, हमें पता होना चाहिए, कोच सर को पता होना चाहिए या कोच मैम को पता होना चाहिए, हमारे जो इंटर डोमेन काम करते हैं उनको पता होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एथलीट को पता होना चाहिए। तो मूड प्रोफाइलिंग हम यूज करते हैं ये ब्रूनेल मूड स्केल से, तो विच इज शॉर्ट फॉर्म ब्रम्स बोलते हैं इसको। इट्स अ क्वेश्चनेयर स्पेसिफिकली फॉर द एथलीट पॉपुलेशन। ये ब्रूनेल मूड स्केल जो है इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट which was known as POMS. So that was given in 1960. So this is the most updated version of that questionnaire. उसमें 65 आइटम्स है, इसमें आपके 24 आइटम्स है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेक्स, उसमें भी 6 फैक्टर्स थे, इसमें कंसाइज करके भी 24 करके सारे वर्ड्स को 24 में करा है, और 6 फैक्टर्स ही हैं। तो 6 फैक्टर्स होते हैं आपके मेन: टेंशन, डिप्रेशन, एंगर, विगर,
फटीग और कंफ्यूजन। तो जो आपका डिप्रेशन है इसमें एक मॉडरेटिंग फैक्टर बन जाता है। मॉडरेटिंग फैक्टर मतलब होता है कि वो फैक्टर की वजह से आपकी और प्रोफाइल जो है और जो आपके मूड स्टेट्स हैं, मूड फैक्टर्स हैं, वो भी वेरी कर सकते हैं ड्यू टू डिप्रेशन। तो वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डिप्रेशन हाई है, इट कैन अफेक्ट योर टेंशन लेवल्स, इट कैन अफेक्ट योर फटीग लेवल्स, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर एंगर लेवल्स, एंड डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर कंफ्यूजन लेवल्स। और विगर को अफेक्ट कर ही सकता है, क्योंकि डिप्रेस मूड में क्या होता है कि यार मन ही नहीं है कुछ करने का, क्या करे, इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली विगर डाउन हो जाएगा। विगर मीनिंग कि आप कितना एफर्ट डाल पा रहे हो, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना कॉम्पिटेंट आप हो। तो वो चीज बहुत जरूरी होता है मॉनिटर करना कि अच्छा आज इसका डिप्रेशन हाई है, कल तो लो हो गया, या इस वीक में इसका डिप्रेशन हाई आया है, मे बी ही नीड सम इंटरवेंशन, मे बी ही नीड सम मूड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विच वी ऑल्सो यूज इन आवर प्रैक्टिस। तो उसको समझाने के लिए आई हैव दिस मूड प्रोफाइल्स। ठीक है, तो इसमें मैंने एक एथलीट आई थी, ऑब्वियसली नाम नहीं बोलूंगा। तो शी वॉज इन अ स्टेट कि कंप्लीटली हेल्पलेस, कंप्लीटली वनरेबल, आप देख पा रहे होंगे। तो ये पहला ग्राफ है, दिस इज द प्री ग्राफ, एंड दिस इज जो इनवर्स आइसबर्ग मूड प्रोफाइल लिखा है, दैट्स अ प्री प्री ग्राफ। तो मैंने ये डेली मॉनिटर नहीं किया था, दिस वाज आई थिंक द गैप ऑफ 4 वीक्स। तो इसमें और अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं चैंपियंस में उसमें हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें हमें काफी वेरिएशन दिख रहा है कि अच्छा सर आज प्रैक्टिस अच्छा नहीं हुआ, यू कैन सी क्लियरली कि उसका मूड इतना फ्लक्चुएट हुआ है। हाँ सर आज प्रैक्टिस अच्छा हुआ, उसमें विगर आया था, डिप्रेशन लो था। तो वो भी हम एंटर करते हैं कि हाँ देखो ये मूड का कितना बड़ा रोल है इसमें। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इनवर्स आइसबर्ग मूड प्रोफाइल में उसका डिप्रेशन कितना हाई था। तो दीज आर द नॉर्म स्कोर्स कि 107 मतलब वेरी हाई। जो भी इसके चार आइटम्स होते हैं उसमें मतलब 4 4 4 4 था। मतलब शी इज फीलिंग डिप्रेस्ड, शी इज फीलिंग डाउन हार्टेड, शी इज फीलिंग बिटर, शी इज फीलिंग मिजरेबल। तो ये सब इसमें फैक्टर्स होते हैं। और आप देखोगे टेंशन में भी हाई था 76, एंड एंगर भी हाई था, फटीग कंपैरेटिवली लो था, बट कंफ्यूजन भी हाई था 91। बिकॉज सिंस द डिप्रेशन फैक्टर इज हाई विच इज अ मॉडरेटिंग फैक्टर, तो आप देख पा रहे होंगे टेंशन, एंगर और आपका कंफ्यूजन कितना हाई है, क्योंकि वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टेंशन फिर भी कर्विलिनियर होता है। टेंशन में अगर आप टेंशन में खेल रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, और वैसे ही एंगर का, एंगर में भी अगर आप ज्यादा अग्रेसिव हो तो परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है, बट आप अग्रेशन आपका हाई है तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू। तो टेंशन एंड एग्रेशन हैज अ कर्विलिनियर इफेक्ट कि ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, बट डिप्रेशन, फटीग एंड कंफ्यूजन हैज अ डेबिलिटेटिव इफेक्ट कि अगर ये हाई होगा तो कंफ्यूजन रहेगा तो हमें समझ नहीं आएगा ना, फोकस ही हमारा रेगुलेट नहीं हो पाएगा। डिप्रेशन हाई रहेगा तो हमारा किसी चीज में मन ही नहीं रहेगा। तो वो हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस लो कर देता है। एंड विगर आपका अगर 50 से लो रहेगा तो 50 इज द वाटर लाइन। वाटर लाइन मतलब होता है 50 इज द मिड वैल्यू। 50 से विगर सिर्फ ऊपर होना चाहिए, बाकी कम होना चाहिए। जैसा आप देख पा रहे होंगे आइसबर्ग मूड प्रोफाइल में कि टेंशन 39 है, डिप्रेशन आपका 45 है, एंगर 45 है, एंड विगर इज 67 विच इज मोर देन 50, एंड फटीग 40 है, एंड कंफ्यूजन 43 है। मतलब ये वाटर लाइन से जो आपके डेबिलिटेटिव इफेक्ट देता है या कर्विलिनियर इफेक्ट देता है वो सब नीचे है। द ओनली पॉजिटिव ट्रेट इन दिस इज विगर। और आप देख पा रहे होंगे थ्रू वेरियस मूड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, वेरियस rigorous talk therapy sessions, rigorous DBT approached session, क्या क्या नहीं हुआ था through various activities. 4 weeks में we were able to just do from our inverse iceberg mood profile, we were able to make an iceberg mood profile, which was a very good help for the athlete. And now she's competing in an for Asian qualifying championship, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। We were just a supporting hand, we were just there to just support, क्योंकि उनका एसएनसी भी चलता रहा, उनका न्यूट्रिशन सेशन भी चलता रहा, और उनका फिजियोथेरेपी भी चलता रहा। तो हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूट रहा, क्योंकि इंजरी वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो इंजर्ड एथलीट्स होते हैं उनका आपको मोस्टली
इनवर्स आइसबर्ग मिलेगा, बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड कि सर मैं कब वापस जाऊंगा, और दे आर डिप्रेस किया वो खेल नहीं पा रहे हैं। और पीक परफॉर्मेंस में भी ऐसा होता है कि सर परफॉर्मेंस तो हो रहा है लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, वही सेम चीज करे जा रहा हूँ, क्या नया करूँ, कैसे इंप्रूव करूँ। तो ये इनवर्स आइसबर्ग हमें आइडिया देता है कि जो फैक्टर्स हैं जो 50 से कम होने चाहिए, जैसे टेंशन, डिप्रेशन, एंगर, फटीग, कंफ्यूजन, वो 50 से कम होना चाहिए। इट शुड बी बिलो द वाटर लाइन मार्क विच इज 50, एंड बिगर इट शुड बी द फैक्टर विच शुड बी मोर देन 50। तो आपको समझ आएगा कि विगर हाई है तो मतलब बंदा इज ही इज कॉम्पिटेंट, वो अच्छे से एफर्ट डाल रहा है। 29 मतलब वो एफर्ट डाल ही नहीं रहा है क्योंकि उसका मन ही नहीं है। फ्रॉम देयर, फ्रॉम 29 to 67 वी मेड हिम टिल 67। 67 मतलब she was able, she was fine, she was able to regulate her emotions well, she was able to understand herself well, and self awareness बहुत अच्छा हो रहा है उनको। she was able to comprehend कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इनिशियली उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। she was having sore self doubts, और she was also doing self harm, बहुत कुछ हो रहा था। but when we see this profile we know yes, मूड प्रोफाइलिंग से हमें ये समझ आता है कि कहाँ से कहाँ चेंज आया है एंड हाउ दिस चेंज हैपन। एंड अगर हम डेली मॉनिटरिंग करें इससे, इट कैन गिव यू a very good result and very good brief about the athlete, which I am again using it for each and every athlete. I do mood profiling every day ताकि मुझे पता रहे कि उस दिन what she felt, क्या हो रहा है, और जब मैं इंटरवेंशन दे रहा हूँ तो क्या हेल्प हो रही है क्या नहीं हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि हम मूड प्रोफाइलिंग मैं तो यूज कर रहा हूँ, एंड आई वुड सजेस्ट माय कलीग्स एंड एथलीट्स टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर ऑल्सो कि मूड और इमोशंस आपका बहुत जरूरी है, जिस इक्वली इंपॉर्टेंट जैसे आपका फिजियोलॉजिकल पार्ट है या ट्रेनिंग पार्ट है या स्ट्रेंथ पार्ट है, इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप अपना इमोशनल एक्सपीरियंस भी समझो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सच नाइस लिसनर्स। Yes, thank you so much, sir. If you have any questions and doubt, आप सर से पूछ सकते हो. We have 5 minutes Q&A session. अगर आपका कुछ डाउट्स है. Yes, Vidisha. Yes, thank you. Loved the session. Yes, पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफी सारी चीजें हैं जो मुझे खुद आज नई नई सीखने को मिली, एंड आई होप सबको पसंद आ गया होगा। जो भी सर ने नए नए टेक्निक्स आपको बताई हैं, जो एक्सरसाइजेस बताई है, वो आप आपके प्रैक्टिस में, कंपटीशन में आप उसको यूज करेंगे। एंड देन सर ने एक स्पेशली प्रोग्राम बनाया है फॉर द अपकमिंग आवर केएसएस मैचेस, जो हमारे केएसएस मैचेस अभी डिक्लेयर हुए हैं। आई थिंक 1 मंथ का टाइम है हमारे पास, तो डेडिकेटेडली उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल प्रोग्राम सर ने बनाया है। एंड प्रोग्राम्स के बारे में कुछ भी आपको मोर डिटेल चाहिए तो आप हमारे बैकएंड टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। सो वहाँ से आपको और भी डिटेल्स प्रोग्राम के रिलेटेड मिल जाएगी। उसमें पूरे 1 मंथ का आपको हैंड होल्डिंग मिलेगा, अलग अलग एक्टिविटीज, असेसमेंट्स, गोल ओरिएंटेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आज स्टूडेंट्स को हमारे बहुत ही इंफॉर्मेटिव, यूजफुल information दी। And if you have any questions still, we can wait for the 1-2 minutes. Otherwise, we'll end up the sessions. So, okay guys, for the more information, please